بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر اوان، ایک اوورسیز پاکستانی۔ اس وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑا ہوں۔ جو میرے پیچھے آپ کو ادارہ نظر آ رہا ہے، اس میں آپ نے انصاف دیکھا ہوگا، کس طریقے سے انصاف دے رہے ہیں یہ لوگ اور کس طریقے سے عام ہے انصاف۔ میں تمام لوگوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ دیکھیں، میرا ایک نجائز قبضے کا کیس ہے جس کے لیے میرے 21 سال برباد کیے اس سسٹم نے۔ یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ترازو بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن اس میں انصاف کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، جتنے بھی دوست بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، دیکھیں آج کا الیکشن ہوا ہے سینٹ کا، آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے کروڑوں میں بولیاں لگی ہیں۔ یہ لوگ کریں گے مسائل ہیں لوگوں کے، ان کو کیا غرض ہے کسی کے مسائل کی؟ کسی کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمام ان لوگوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں میں نے کتنی اسٹرگل کی ہے، اور آج میرا جو بیان دیا اس بندے نے، عارف نام کا بندہ، جو میں شروع سے پہلے دن سے اگر اس سے پوچھا جاتا طریقے سے تو وہ بیان اسی وقت بھی یہی دیتا جو اس کے پاس آج تھا۔ آج اس نے بیان دیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے یہ ملی اور دراجی کمپنی جو ہے، ان کو میرا بیان ہی نہیں دیے اس بندے نے۔ آپ صحاب لگا لیں کہ آپ لے سکیں گے انصاف ان لوگوں کے ساتھ؟ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑوں گا یا میں ان لوگوں کے ساتھ لڑوں گا، لیکن میں نے پھر بھی لڑائی جاری رکھی۔ آپ نے میرا اشر دیکھا ہوگا۔ کیا عام آدمی کو اس طریقے سے انصاف ملے گا اس ملک میں؟ عام آدمی لے گا انصاف؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، میرا آپ نام لکھیں گے ادھر سپریم کورٹ کے اندر ناصر اوان، تو ہزاروں کے حساب سے میری اپلیکیشنیں نکلیں گی ادھر سے۔ کیا عام آدمی اس طرح ذلیل ہوگا؟ میرا اگر کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے یا میرے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس ملک میں، تو میرے ساتھ بالکل انصاف نہیں ہوگا، کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ آپ کلمہ گو ہیں، آپ کو فرض بنتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کرائیں آپ۔ کیا یہ اسلامی ریاست ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے اپیل کرتا ہوں، خدارا سپریم کورٹ دوبارہ میرے کیس کے اوپر نوٹس لیں اور حقائق ساری دنیا کے سامنے رکھیں۔ ان لوگوں نے مجھے لوٹا اس پاکستان میں، مجھے بدنام کیا، مجھے انہوں نے بلیک میلر ڈکلیئر کیا، مجھے ذہنی مریض ڈکلیئر کیا، میرے اوپر تشدد کیا انصاف مانگنے پر۔ اوورسیز پاکستانیوں، یہ آج میرا اشر نہیں ہے، یہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کا اشر ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ میرا آپ ساتھ دیں۔ اگر آج میرے ساتھ یہ انصاف نہیں ادارے کر سکتے، یہ عدالتیں، تو میرا ٹیکس جو انہوں نے کھایا ہے، یہ ہر چیز آرام چل رہی ہے سسٹم میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سینٹ کے الیکشن میں کس طرح بولیاں لگی ہیں، کروڑوں روپے ان لوگوں نے بانٹے ہیں۔ تو بھائی، ان کو کروڑوں روپے کا کیا الیکشن کا رزلٹ آیا ہے؟ عمران خان صاحب، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے طریقہ انصاف کے لیے۔ آپ لوگوں کا آج الیکشن ہو جائے، کوئی ووٹ نہیں بندہ آپ کو ڈالے گا۔ لوگوں نے آپ کی کارکردگی دیکھی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے ریاست مدینہ کے نام پہ۔ کیوں؟ آپ اگر کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، آپ کے پاس کچھ سمجھ نہیں تھی آپ کو سسٹم کی، آپ نے ہم کو کیوں پھنسایا اپنے ساتھ؟ ہم نے تو ریاست مدینہ کے نام پہ ووٹ دیے کہ انصاف ہوگا اس ملک میں۔ کیا 3 سال 2.5 سال گزر گئے، کیا کوئی انصاف نظر آیا؟ اگر کوئی ادارہ عمران خان آپ کا کام کر رہا ہے تو برائے مہربانی میرا کیس دے کے ٹیسٹ کریں۔ اوورسیز پاکستانی بھی میرا کیس دیکھیں اور ٹیسٹ کریں، کون سا ادارہ کام کر رہا ہے۔ ایسے منافقت ہے یہ، اگر ایک بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور خاموشی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ ذلیل ہو رہا ہوں اس ملک میں اور میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اس نے نوٹس لیا ہے، اس میں پنجاب گورنمنٹ توہین عدالت کر رہی ہے، میرے پیسے نہیں ادا کر رہے جو سڑک کے نیچے میری زمین ڈال رہے ہیں۔ میرا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر میرے پیمنٹ ادا کی جائے۔ وہ کہتے ہیں توہین عدالت کر لو۔ یہ عدالت کے آرڈر ہیں، یہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس میں توہین عدالت کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ والے، اور مجھے کہتے ہیں کہ میں دعویٰ کروں توہین عدالت کا۔ میں جب دعویٰ کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا اس توہین عدالت میں۔ اگر اس عدالت کی اتنی عزت ہوتی، اتنا احترام ہوتا، تو جو آرڈر 2 ماہ کے اندر اندر کیے تھے کہ میری گورنمنٹ کی طرف اگر کوئی کمپنسیشن ہے تو وہ فوری طور پہ مجھے ادا کی جائے۔ میں بچوں کے ساتھ ذلیل ہو گیا ہوں، میرے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا اس انصاف کے سسٹم میں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس سارے سسٹم کے اوپر۔ میں نے جو جنگ لڑی ہے، یہ میں نے جنگ لڑی ہے، جہاد کیا ہے انصاف کے لیے۔ یہ کہتے ہیں دلیز میں انصاف ملے گا، ووٹ کی عزت دو، فلاں کرو، تمکان کرو۔ کدھر ہے ادارے؟ کدھر ہیں ادارے؟ آپ کو کسی جگہ نظر آئے ہیں ادارے؟ یہ میری بیگم بھی بات کرے گی۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور عمران خان صاحب سے دوبارہ اپیل کرتے ہیں، فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ، جنگی بنیادوں پہ ہمارے کیس کا نوٹس لے کے جو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں دیا جائے۔ اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے ملک چھوڑنا ہے کہ ملک میں رہنا ہے۔ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔
جی السلام علیکم تمام لوگوں ویڈیو کو سارے بندے شیئر کریں جتنے بھی میرے بھائی ہیں دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان صاحب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ ان تمام اداروں کو بند کر دیں جدھر نہ انصاف مل رہا ہے اور نہ لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں. اتنی بڑی بلڈنگیں بنا کے کیا مقصد ہے ان چیزوں کا؟ جب لوگ ادھر ہوار ہو رہے ہیں، جب عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، یہ ادارے کس کام کے لیے ہیں؟ اتنی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان کے سارے اخراجات گورنمنٹ سے پورے کر رہے ہیں آپ لوگ، اور گورنمنٹ ہم جیسے غریبوں کا خون نچوڑ رہی ہے. ہم لوگ ادھر پاکستان میں اس لیے آئے تھے، اس لیے انویسٹمنٹ کی تھی کہ ہم لوگ ادھر اس طرح ذلیل ہوار ہوں. رات کی کس پہر میں ہم ادھر کھڑے ہیں. آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی میں آسانی لانے کے لیے ہم اتنی مشکلیں اٹھا رہے ہیں. آپ لوگوں سے وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں، آپ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ورنہ آپ بالکل حکومت چلانے کے قابل نہیں. میں آپ کی ایک بہن ہوں، آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اتنی دفعہ آپ سے اپیل کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ ہمارے کیس پہ از خود نوٹس لیں. آپ کے نوٹس کے لیے آپ نوٹس لیں گے تو تمام ادارے الرٹ ہوں گے، لیکن آپ اس پہ کچھ ایکشن ہی نہیں لے رہے. اتنی دفعہ آپ سے اپیل کی ہے، چیف جسٹس سے اپیل کی ہے، لیکن کسی ادارے میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے کیس پہ نوٹس لیں. ہم لوگ ادھر سڑکوں پہ پریشان حال، اداروں کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں کہ شاید کسی ادارے سے ہماری داد رسی ہو. جی میرا بیٹا آپ طرف سے. جی السلام علیکم. جی آج ہم پھر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے آئے ہیں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. ہم اس اپنی زمین کے لیے 21 سال سے اس ملک میں جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اپنا انصاف مل سکے. ویڈیو کو شیئر کر دیں، اتنی مہربانی تو کریں. گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم لوگ دیکھیں تو صحیح. ہمیں لوگ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ذلیل ہو رہے ہیں اپنے پاکستان میں، اور انصاف کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اس طرح سے عام آدمی کو انصاف ملے گا؟ جی میرا بیٹا. ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے کیس کا دوبارہ سے نوٹس لیں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. ہم نے عمران خان صاحب سے میں دوبارہ اپیل کروں گا کہ ہمیں انصاف مل سکے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. ہم اپنی جس ٹائم کی ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور ہم تب سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جی میرا بیٹا عبد الرحمان. جی السلام علیکم. میرا نام عبد الرحمان ہے اور میری آپ سب بندہ سے اپیل ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے جسٹس فار ناصر روان، اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکیں اور ہمارے 1000 سبسکرائبرز آپ ہزارہ کمپلیٹ کروائیں تاکہ ہم ادھر سے بھی لائیو آئیں اور آپ کو ہماری روز ہمارے جو کیس ہے اس کی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور آپ میری وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے کیس پہ دوبارہ سے نوٹس لیں تاکہ ہمیں انصاف ملے. اچھا جی میرا بیٹا ادھر آ جی جی چل. جی میرا بیٹا. السلام علیکم. میرا نام ہمارا ناصر روان ہے. آج ہم سپریم کورٹ کے بعد دوبارہ سے احتجاج کرنے آئے ہیں. پہلے بھی ہم بہت دفعہ آئے ہیں. میری اپیل ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے کیس کا نوٹس دیں تاکہ ہم اسکول جا سکیں. ہم تو 3 سال سے اسکول نہیں جا سکے. آپ سارے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. بہت شکریہ آپ کا. جتنے بھی میرے دوست بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا سپریم کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ تھا پرامن طریقے سے. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمارا ساتھ دیں سارے معاملے میں اور ہمارے ساتھ انصاف کرانے میں ہماری مدد کریں. ہم انصاف کے علاوہ کچھ نہیں مانگ رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف ہی نہیں مل رہا. تو کیا سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کے لیے بنایا سسٹم ہے یہ لوگوں نے. غریب لوگ جتنے بھی ایک منٹ غریب لوگ لیں گے انصاف، غریب کریں گے اپنے حق کے لیے بات. کون اٹھائے گا آواز؟ کوئی نہیں آواز اٹھائے گا. جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ، کیا عام آدمی میری طرح انصاف لے گا اگر اس کی زمین پہ قبضہ ہوگا؟ اور بھائی اس ملک میں قبضے کا کیس کوئی بندہ نہ لڑے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ قبضے کا بالکل کیس آپ نہ لڑیں، کیونکہ قبضہ آپ نہیں چھڑا سکتے. کیونکہ وزیر اعظم پہ بس نظر آیا اپنے بنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ چھڑانے کے لیے، تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو کیڑا مکوڑا ایک عام سا آدمی ہوں. لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا میرا اور ساتھ دے دیا
थोड़ा सा आपने मेरी मदद कर दी, मेरी वीडियो को कम से कम आप शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चले सिस्टम है क्या, लोगों को पता चले कम से कम कि किस तरीके से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। यही सिस्टम है जो ताकतवर को घर जाके दलील पे शापर में डाल के इंसाफ दे रहा है। यही सिस्टम है। एक गरीब आदमी, मैं सारी दुनिया के सामने चीख कर मैंने बताया कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या हुआ है मेरे साथ? कोई बात कर रहा है? कोई सियासतदान आपको नजर आ रहा हो, कोई जनाब सलामी जमात का नजर आ रहा हो, कोई दीनी जमात का, कोई मजहबी जमात का, कोई कलमा गो जो उठ खड़ा हो जाए मेरे साथ, लेकिन खामोश है सारे। तो हम कैसे कलमा गो हैं? किसी के हक के लिए बात नहीं कर सकते, कोई परेशान हाल है उसकी मदद के लिए वीडियो नहीं शेयर कर सकते। ये सोशल मीडिया ने मेरा बड़ा साथ दिया। अगर ये सोशल मीडिया ना होता कभी जिंदगी में मैं इंसाफ नहीं ले सकता। मैंने सोशल मीडिया से भरपूर फायदा उठाया। मैं दिन रात भाग रहा हूं कि मेरे बच्चों का हक जो इन्होंने खाया है और खाने की नाकाम कोशिश की है, जो मैंने इनको खाने नहीं दिया। आज उस बंदे ने बयान दिया, आरफ लाले मुसे वाले ने, कि इनको मैंने बेची नहीं है जमीन, ना को बयान दिया। तो भाई इन्होंने बयान नहीं दिया, वो मालिक किस चीज के हैं? जी चौधरी परवेज राय साहब के बंदे मल्ली और तराजी साहब, इनको सारी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक जमात का सहारा लेके एक गरीब आदमी का हक मारने की नाकाम कोशिश इन्होंने की है। मैंने इनको खाने नहीं दिया। इन्होंने हर कोशिश की है, हर अरबा इस्तेमाल किया है, हर जो कर सकते थे इन्होंने किया है। लेकिन अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला इनके साथ कंप्रोमाइज, पहली बात है मेरी सारी कौम के साथ कंप्रोमाइज नहीं इनके साथ होगा। ये कि मैं लेके इनके पैसे लेके, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई पैसा है, ना मेरे पास कोई वसाइल है, उसके बावजूद मैं इनसे कंप्रोमाइज अपनी जमीन का नहीं करूंगा। अगर मैं आज कंप्रोमाइज करूंगा, कोई गरीब किसी ताकतवर के सामने आवाज नहीं उठाएगा। तो मैंने जो आवाज उठाई है मेरे भाइयों, ये तो बहुत तरी ही मैंने काम किया है। इस पाकिस्तान कटिया तरीन, करप्ट तरीन सिस्टम है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं। यहाँ जो क्या हो रहा है, ये आज इलेक्शन में आपने देख लिया होगा नतीजा क्या है। तो ये इमरान खान के लिए लम्हा फिक्री है या उसकी टीम के लिए लम्हा फिक्री है कि भाई ये ले जाएंगे, ये इलेक्शन भी ले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला छोड़ेंगे नहीं। ये जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो आपका कोई पता भी नहीं होगा जिस तरीके से आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपके पास फौज पाकिस्तान है, आपके साथ कौम खड़ी थी, आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ अपने दोस्तों को इतनी इतनी बड़ी सीटों पर लिखाया है, कोई काबिलियत नहीं थी उनके ऊपर। आपने ऐसी टीम, नायल किस्म की टीम आपने रखी है। आपका पूरा मुकम्मल फोकस खत्म हो चुका है। कोई किसी किस्म का कोई इंसाफ किसी गरीब को नहीं मिल रहा। गरीब उसी तरह ही जलील हो रहा है, बल्कि उससे ज्यादा जलील हो रहा है। पहली गवर्नमेंट में कम से कम इन्वेस्टिगेशन होती थी, कोई बंदा पूछता था। ये माशाल्लाह तब्दीली ऐसी इसने इमरान खान साहब ने लेके आए हैं और इनकी टीम जो लेके आई है, इनको सोचना चाहिए। आज सूली तौर पे इनको एक अपना मौकफ चेंज कर देना चाहिए सारा, जो इनका अशर आज सेनेट के इलेक्शन में हुआ है। तो मेरे भाइयों कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। ओवरसीज पाकिस्तानी आके चेक कर ले मेरे भाइयों। अगर आपका अशर नशर ना हो गया, ना कोई इतनी मेहनत करेगा इंसाफ के लिए, ना ही कोई इतनी जद्दोजहद करेगा। मुझे जो मारना चाहता है, मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहता हूँ, मुझे बेशक मार दें, लेकिन मुझे गलत करके मारे, सही ना मारे मुझे। मेरे साथ पूरी कौम मरेगी अगर मैं मरा तो। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, मेरी वीडियो को आपने ईमानदारी से शेयर करना है, ताकि मेरे साथ देखें, मेरे साथ नाइंसाफी और जुल्म की इंतहा हो रही है इस मुल्क में। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं जिनका मुस्तकबल तबाह हो रहा है, जिनके लिए मैंने बाहर मजदूरी करके पैसा कमाया, 18-18 घंटे मैंने मजदूरी की, ओवर टाइम लगाए। इनके लिए लगाए कब्जा करने वालों के, या उनके लिए लगाए महकमे के लिए जिनको मैंने टैक्स दिया है प्रॉपर्टी खरीदने का। मैं इनका जिम्मेदार हूं। अगर गवर्नमेंट की कोई जमीन पूरी नहीं हो रही तो इन लोगों ने मेरा तमाशा बना दिया पकड़ के कि मैं एक आम आदमी ताकतवरों के सामने आवाज उठाई है मैंने, तो मेरा इन्होंने अशर क्या किया है। आम आदमी उठेगा, आम आदमी लेगा इंसाफ। कोई इंसाफ नहीं है किसी जगह पे, नीचे से लेके ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे पीछे है, इसका ऑर्डर है मेरे केस के ऊपर। बिल्कुल वो तौहीन अदालत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत महकमा पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। कोई बंदा हरकत में नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि तौहीन अदालत में जाएगा तो 10 साल फिर तौहीन अदालत का केस लड़ेगा। तो इसलिए भाई मैं तौहीन अदालत में नहीं गया। मैं तौहीन अदालत में जा सकता था, लेकिन मैं एक नया कट्टा खोलता, इससे बेहतर था कि मैं इसको छोड़ता। मैं तौहीन अदालत में मैं ये पकड़ के बैठा हूं कि अगर इमरान खान को नोटिस लेता है मेरा, तो मेरा केस अगर तौहीन अदालत में भी होगा तो ये मेरी गवर्नमेंट के पैसे भी ये मुझे नहीं देंगे। जालिम लोग, ये इनका अगर तनख्वाह ना मिले तो ये मर जाए। ये लोग, इनके बच्चे भूखे स्कूलों से बाहर रहे तो इनको पता चले कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं। तो भाई ये जुल्म हो रहा है, इसमें आप 120 बंदे हैं। अगर आप 120 अपनी टाइम लाइन पे मेरी वीडियो ना शेयर करें
तो आप कलमा गो किस चीज के आप कलमा गो हैं? कलमा गो मुसलमान मुल्क है, ये कंट्री है, मैं अपना राइट मांग रहा हूँ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुझे लटकाया जाए, और अगर मेरी गलती कोई नहीं है तो उनको लटकाया जाए जो गलत कर रहे हैं मेरे साथ। तो भाई कोई हुक्मरानी करो कानून की। इस तरह से अगर आप लोग करेंगे गरीब के साथ तो गरीब किधर जाके इंसाफ लेगा? मैंने तो जो वसैल थे मेरे पास, तो मैंने बड़े अफसार जाया किए सारे सिस्टम में। ये जो तराजू लगा हुआ है ये पैसे तोलने के लिए लगा हुआ है, ये इंसाफ देने के लिए नहीं लगा हुआ। ये जो बड़े ज्यादा पैसे देगा उसको इंसाफ मिलेगा इस मुल्क में। तो भाई अगर चाहिए आपको इंसाफ तो पैसे ले आओ तोल के, तो आपको मिल जाएगा इंसाफ। पैसा होना बड़ा जरूरी है। बगैर पैसे के कोई बंदा ना जाए, आवाज ना उठाए, कोई उनकी आवाज नहीं सुनेगा। आपको प्रैक्टिकली तौर पे मारेंगे, आपको थ्रेड करेंगे, आपके ऊपर पर्चे करेंगे। आपको इंसाफ कहते हैं, इंसाफ ले ले आप देख रहे हैं क्या शुरू हुआ है मेरा इंसाफ में। मैं सुप्रीम कोर्ट तक अपना 2 मरतबा मेरा ये सुप्रीम कोर्ट का ये बच्चा मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी जितने मुलाजम है सब मुझे जानते हैं, जितने ये अदारे के अंदर है, पुलिस है, इंतजामिया है, सारे लोग मुझे जानते हैं। मैंने जो जंग लड़ी है मेरे भाइयों, ये छोटी जंग नहीं है, मेरी जमीन है, मैंने पैसा कमाई है, मैं इनको दे दूं इसलिए कि ये परवेज रही के बंदे हैं। आज जो बयान वो बंदा आरफ लाले मुसे वाला दे के गया है, इस बेस में इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इनका तो लेना देना ही कोई नहीं बनता मेरी जमीन के साथ। तो भाई अल्लाह पाक देख रहा है ना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला मेरी मदद कर रहा है। मैं एक यतीम आदमी हूँ, मेरे साथ कोई दुनिया में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है बंदा। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं हूँ और मेरी बेगम है, हम 7 बंदे एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान में इस 22 करोड़ हजूम के सामने। और 22 करोड़ हजूम तमाशा देख रहा है, कोई अपने तरीके से कोई बात कर रहा है, जिसका जितना ज़र्फ है उतनी बात कर रहा हूं। तो भाई इस तरह नहीं होता, इस तरह आप करेंगे तो ये जुल्म करेंगे आप। और अब मेरे साथ आज मेरे साथ इंसाफ हो जाए तो कोई इंसाफ नहीं मेरे साथ। मेरे इन्होंने 21 साल जानबूझ के बर्बाद किए इन जालिमों ने। अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे। ये सिस्टम चला रहे हैं, क्या ये इंसाफ मिलेगा आम आदमी को? इस तरह करेंगे? मेरे तो दलील तक इन्होंने वादा किया वोट के साथ कि आपकी दलील तक इंसाफ देंगे। ये पीटीआई गुजरात वाले, आपको कोई बंदा बात करता नजर आ रहा है? वोट लेने आएंगे लोग। अब भाई सेनेट की सीट चली गई है, ये पीपल पार्टी वाले ले गए हैं। आज तमाशा जो देखा है आप लोगों ने दुनिया के सामने, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से इलेक्शन में उड़ा के ले गए हैं, इनकी जेब से निकाल के ले गए हैं वो सेनेट की सीट। ये बैठे हुए हैं बातें करने के लिए, फालतू किस्म के लोग बिठाए हुए हैं। ना इनकी कबीना में कोई जान है, ना ही इनके जो तजर्बाकार है, पता नहीं किधर टीमें लेके आए इमरान खान, किसके आगे हमको छोड़ा है इन लोगों ने। क्या सिस्टम चल रहा है, क्या निजाम चल रहा है, कोई जवाब दे नहीं है किसी दूसरे को, कोई जवाब दे नहीं है। मेरी आपने वीडियो ना शेयर की, मेरे साथ जाती है। मेरी आप वीडियो वायरल करेंगे, थोड़ा सा मेरा साथ और दे दे, मैं बिल्कुल 95-98% के करीब मैं पहुंच गया हूं जीत के। 2% मेरे बाकी बच्चे हैं, वो मेरी जलालत आप देख रहे हैं कितने दिन होती है, कितने महीने होती है, कितने साल होती है। तो आप मेरा साथ देंगे तो मेरी आवाज बनेगी ना। मैं इनको खौफ आएगा अगर अवाम का प्रेशर पड़ेगा, अवाम प्रेशर डालेगी इन लोगों के ऊपर, तो भाई ये इंसाफ करेंगे मेरे साथ। अगर मेरे साथ 400 बंदा इकट्ठा होकर इधर डी चौक में बैठ जाए, बिल्कुल ये बुलाएंगे, उनको इंसाफ करेंगे जाके। ये तो ये कोई सिस्टम है? ये कोई आप ये इदारा देख लें आप, ये सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें लाखों करोड़ों के बजट जा रहे हैं, लाखों करोड़ों मुलाजम काम कर रहे हैं। तो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि अदल और इंसाफ खत्म हो गया नीचे अदालतों में। भाई क्या हो रहा है? ओ भाई हम किस चीज के, इंसानियत भी कोई चीज होती है। छोड़े मजहब को, छोड़े पाकिस्तानियत को, छोड़े बाकी सारे मामलात को, ओवरसीज को भी छोड़े। इंसानियत की खातिर छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरा राइट बनता है तो मुझे दे, अगर मेरा नहीं बनता तो मुझे फांसी की सजा का मुतालबा करें ओवरसीज पाकिस्तानी। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए कि एक जान होकर मेरी आवाज उठाएं और सारी जगह पे इनको बोलें भाई हम ओपन ट्रायल चाहते हैं इस कौम का, इस केस का, पूरी कौम के सामने इस केस का ट्रायल होना चाहिए, ओपन हम मुतालबा करते हैं। क्या ये जायज मुतालबा नहीं है? इंशाल्लाह ताला पूरी कौम मेरे साथ खड़ी होगी। थोड़ा सा मेरा आपने और साथ देना है, इसलिए देना है कि मेरी आवाज पहुंचे इन लोगों तक। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्डिंग बननी है ये वाली, इसमें गरीब को रिलीफ नहीं है। कल को बड़े सियासतदान का केस आएगा तो कल ही उसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी, गरीब जलील होगा। मेरी तमाम दोस्तों से, बहन भाइयों से, बुजुर्गों से ये अपील है कि आप लोग मेरी वीडियो शेयर करें। सबसे ज्यादा जो मुझे फायदा होगा
میری ویڈیو سے پریشر پڑے گا ان لوگوں کے اوپر. اور اوورسیز پاکستانی جدھر جدھر بھی بیٹھے ہیں خدا کے لیے میرا ساتھ دیں. میں نے بڑی مشکلوں سے ادھر تک میں کیس لے کے آیا ہوں. انہوں نے میرا ہر جگہ پہ کیس دبانے کی کوشش کی ہے, ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے اثر انداز ہونے کی میرے کیس کے اوپر کہ ایک یتیم کو اس کا حق نہ مل سکے. تو وہ میری پیسے جو باہر میں اوورسیز پاکستانی باہر کے ملک سے کما کے اپنے ملک میں لے کے آیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کو میں نے ٹیکس دیا, اور میں نے ٹیکس دینے کے بعد میرا آپ اشر دیکھ رہے ہیں کہ میرا کیا اشر کر رہے ہیں, مجھے مار بھی رہے ہیں, میرے اوپر پرچے بھی کر رہے ہیں, لیکن میں ہار نہیں مان رہا اور نہ میں مانوں گا جب تک میری سانس چل رہی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا اصولی طور پہ ان کے گریبان پکڑ کے انصاف بنتا ہے, لیکن میں جب ایسا کام کروں گا تو میرے اوپر یہ پرچے کریں گے, میرے اوپر بڑا حرکت میں آئے گا قانون. ویسے کوئی قانون نہیں ہے, یہ صرف غریب و مسکینوں کے لیے بنائی گئی ہیں یہ عدالتیں, یہ سسٹم کیا ہے, کدھر گئے ہیں, کدھر گئے ہیں وہ سیاست عبادت کرنے والے, وہ غریب کی مدد کرنے والے, وہ جن کو پتا تھا کہ بڑا طاقتور بندہ بڑا وکیل کرتا ہے, وہ طاقتور بندہ تلک لڑاتا ہے, تو پہلے ووٹوں کے پہلے تو ان کو سارا پتا تھا. آج جب سے یہ گورنمنٹ ان کی آئی ہے یہ تو سارے مر گئے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں اس کے نام سے. یہ بڑی نانصافی کر رہے ہیں, اور یہی سپریم کورٹ کے باہر میں اگر یہ میری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ ہوگی, اگر نہ ہوئی تو میں اپنے بیوی بچے لے کے ادھر بیٹھ جاؤں گا دن کو, رات کو مجھے کوئی فرق نہیں دن کو رات کو کرتا, میں دن کو ادھر بیٹھوں گا. اور جب تک میرے کیس کا یہ نوٹس نہیں لیں گے, بلائیں گے نہیں گجرات انتظامیہ کو, بلائیں گے نہیں ساری جو کابینہ ہے جدھر جدھر میرا کیس چلا ہے ان سے یہ رپورٹ نہیں منگوائیں گے, میں ادھر سے بچے لے کے نہیں اٹھوں گا. بے شک مجھے 2 دن بیٹھنا پڑتا ہے, 4 دن بیٹھنا پڑتا ہے, 2 مہینے بیٹھنا پڑتا ہے, میرے اوپر پرچے کرتے ہیں, میرے اوپر جو مرضی ہے یہ کر لیں, میں ادھر بیٹھوں گا کیونکہ یہی ایک ادارہ ہے جو آخری امید ہے. مجھے میرے کیس پہ یہی نوٹس لے گا تو ان سے جواب سوال کرے گا. میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کوئی انصاف نہیں میرے بھائیوں, کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے, آپ کو بالکل انصاف نہیں ملے گا. میں نے تو اتنی جدوجہد کی ہے, مجھے نہیں مل رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تریہیں بھگتیں گے تو آپ کو انصاف مل جائے گا؟ یہاں طاقتور کے لیے بیٹھے ہیں, ہر جگہ پہ طاقتور کے لیے سہولت کار موجود ہے, ہر جگہ پہ اس کے گھر تک یہ انصاف دے کے آ رہے ہیں. اور بھائی اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی بندے ہیں جن کی کوئی جماعت نہیں ہے, وہ بھی بندے ہیں جن کا کوئی رشتہ دار بڑا عہدے پہ نہیں ہے, وہ بھی رشتہ دار ہیں جن کا کوئی نہیں پاکستان میں یا دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے, ان کو انصاف نہیں ملے گا. ان کے لیے تو آتے ہیں کھولتے ہیں عدالتیں چھٹی والے دن بھی طاقتوروں کے لیے. اور بھائی آج تمہاری جیب سے عمران خان لے گئے ہیں سینٹ کا الیکشن, کروڑوں روپے خرچ کیے آپ لوگوں نے. آپ کو پتا تھا کہ ہر قسم کا ضمیر بک رہا ہے, چھوٹا ضمیر بھی بک رہا ہے, بڑا ضمیر بھی. اس ملک میں ہر چیز بکتی ہے, پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس ملک میں. یہ دنیا کی واحد کنٹری ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کے اوپر بادشاہ جتنا مزہ لے سکتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں. آپ کی گاڑی کو کوئی نہیں روکے گا, آپ کی گاڑی کو چیک نہیں کو کرے گا. آپ کسی کو قتل کرتے ہیں آپ کو ہتھکڑی نہیں لگائے گا. آپ کسی کو گولی مارتے ہیں آپ اس کو جان سے مار دیتے ہیں, پرچہ درج نہیں ہوگا. تو یہ کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ, ڈر رہے ہیں ہم. اور بھائی ڈرو, میرا اشر دیکھ کے تو کم سے کم تھوڑا اتنا تو ڈرو. میں تو آپ کا فائدہ کر رہا ہوں, مجھے کیا فائدہ ہے, کرو انویسٹمنٹ, آ کے لڑو قبضے ادھر آ کے عدالتوں میں. میں تو وہ آپ کو قاعدہ بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی بندہ دنیا میں نہیں بتائے گا. پریکٹیکلی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا بھلا کر رہا ہوں. مجھے اوورسیز پاکستانی کا 1 روپے کا کسی کا نقصان ہوتا ہے, میرے اندر تکلیف ہوتی ہے کہ اوورسیز کا نہیں ہونا چاہیے. ہم کتنی ایک پیسہ مزدوری کر کے کماتے ہیں. ہمارے ساتھ اس ملک میں یہ ہو, ہمارے تو اسپیشل کورٹ ہونی چاہیے. جو قبضے کے کیس ہیں وہ تو چلنے ہی ملٹری کورٹ میں چاہیے. یہ ان عدالتوں میں بالکل قبضے کا کوئی کیس نہ لے کے جائے بندہ. اسپیشل کورٹ ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کی. اور دوسرا ایک ایسا قانون پاس کرانا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتا ہے تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے یا اسے لوٹ لیا جاتا ہے اس ملک میں, تو وہ ان لوگوں سے نہ لڑے جا کے جنہوں نے قبضہ کیا ہے یا جنہوں نے لوٹا ہے. وہ گورنمنٹ کے پاس جائے, اس کو بولے یہ میں نے کروڑ روپے انویسٹمنٹ کی ہے, یہ کروڑ میرا واپس کر دے, مجھے زیادہ نہیں چاہیے جتنا میں نے انویسٹ. باقی آپ جاؤ جا کے لڑو اداروں میں, جا کے لو انصاف, ان سے لڑو. گورنمنٹ لڑے نا ان قبضہ گروپوں سے, ان کو پتہ چلے کہ قبضہ گروپوں سے لڑنا کتنا مشکل ہے. عمران خان کی چیخیں نکال دی ہیں یہ لاہور والے یہ کیس جو چل رہے ہیں ان کا بنوئی کا. آئی جی چینج کر رہے ہیں, دوجا کر رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کیا عمران خان نے. عمران خان قبضہ گروپ کے سامنے سرنڈر کر گیا. اس کے صرف آپ کدھر گئے, آپ کو 4 دن نظر آتے ہیں قبضہ گروپ آپ چھوڑ دیے. آج یہ کام ہوا ہے پاکستان کے طریقہ, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا. عام آدمی کو کیا فائدہ ہے یہ سینٹ کا,
इनको फायदा है जो बैठे हुए हैं इनके अंदर सेनेट में या कौमी असम्बली में। आम आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है? आम आदमी को ठुड्डे मार रहे हैं, इंसाफ के नाम पे पर्चे कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तौर पे मार रहे हैं वर्दी में। और भाई क्या क्या कसूर है? कसूर तो बताओ। आज तो मेरे साथ ये हो रहा है, कल को किसी और के साथ होगा, कल और कोई नासर अशरफ इसी तरह मेरी तरह जलील होता होगा तो आंखें खोल लो। कोई नहीं, अगर आपके भाई की जमीन पे कब्जा होता तो आपने कोशिश तो करनी थी कि आपके भाई का साथ दे आप। तो मैं जो अपना भाई समझे तो मेरी कम से कम वीडियो शेयर कर दें, ताकि मैं जितनी लड़ाई लड़ के आया हूं मुझे कम से कम अप्रिशिएट करे इस बात पे कि मैंने जो लड़ाई लड़ी है ये मैंने कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ी। गुजरात के ये ताकतवर लोग हैं, ताकतवर, सारा गुजरात शहर नहीं बल्कि पूरा पंजाब इनको जानता है कि ताकतवर लोग हैं, लेकिन मैंने इनको हर जगह बहराया है। आज वो आरफ लाले मूसेवाला जिसने जलीस काम इनके करके दिया ये मल्ली साहब के वालिद साहब के नाम पे, आज उसने बयान दिया है कि मैंने जनाब कोई नहीं इनको जमीन दी, बयान ही नहीं दिया इनको। और मेरे भाइयों देखो इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, आपको पता चले कि ये क्या कर रहे थे। ये 20 साल पहले सवाल करने चाहिए थे जो आज सवाल हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने हमसे ये ड्यूटी ली है। मेरी फैमिली ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस लड़ा है, पूरी फैमिली ने। हमने बहादुरी से इसलिए लड़ा है कि किसी और का नुकसान ना हो। मैं तो चाहता हूं कि कोई इधर जरूरत ना करे किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की जमीन पर कब्जा करने की। ये तो जालिम सिस्टम है भाई। भूल जो इस मुल्क में इंसाफ, आपको बिल्कुल कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। खास करके कब्जे का केस बिल्कुल मेरा भाई मत लड़ो। मैं आपसे अपील करूंगा कब्जे का केस लेके अदालतों में मत जाएं। आपका किसी जगह पे से आए आपको जलील करने के, और आपकी जेब में जो होगा वो जाया हो जाएगा और आपको दर बदर के आपको धक्के मिलेंगे, आपको मारेंगे इंसाफ मांगेंगे। तो ये मुल्क है, आप उधर बैठ के देख रहे हैं क्या काफरों के मुल्क में इस तरह इंसाफ हो रहा है? ये तो सलामी रियासत है मेरे भाइयों। यहां दे रहे हैं जो ताकतवर है, किसी का ताकतवर का भाई है, किसी पॉलिटिशियन का भाई है, किसी ब्यूरोक्रेट्स का भाई है, उसको इंसाफ भाई यही सिस्टम दे रहा है। ताकतवर को यही सिस्टम घर में जाके इंसाफ दलीज पे दे रहा है और आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक ने हमसे जो काम लिया है, मैं एक छोटा सा अदना सा कीड़ा मकोड़ा इंसान हूं। मेरे से अल्लाह पाक ने काम लिया है, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया है। लोगों की तो फैमिली नहीं बच्चे आप बैठा सकते रोड के ऊपर एक दिन। मैं तो 8 माह प्रेस क्लब के बाहर बैठा रहा और मेरा यही मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट मेरे केस का नोटिस ले। मुझे पता था जो मेरा अशर ये कर रहे हैं या जो मेरा ये अशर होगा इस पूरे सिस्टम में, तो मैंने जंग लड़ी है। मैंने पूरी दुनिया को बताया कि ये मेरे साथ नाइंसाफी गुजरात में हो रही है। कोई सियासतदान कोई आपको नजर नहीं आएगा गुजरात में मेरे केस में बात करता। मेरे केस में मैंने खुद इंसाफ लेना है। मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही। ये बैठे हुए हैं ये सिस्टम चलाने वाले, इनको ख्याल करना चाहिए। ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा हो जाए, ये ना बताएं चीफ जस्टिस साहब कि मैं चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हूं, मुझे छुड़ा के दें कब्जा। वजीर आजम ने अपना टेलर लगा लिया, कोई इधर है ही नहीं सिस्टम। ये पता नहीं किस मुल्क का ये कानून आइन और कानून किसने बनाया था, अल्लाह पाक उसका बेड़ा गर्क करे। इसमें गरीब के लिए तो कुछ रखा ही नहीं इसने। गरीब को कहते हैं जाओ भाई ये अदालतें खुली हैं, जाके ले लो इंसाफ। अदारे जो है अगर आप अदालत में चले जाएंगे तो आपकी जान 100 साल नहीं छूटेगी। अगर पार्टी को तगड़ी है आपके सामने तो आप फिर आपकी आत्मा इधर ही खज्जर खराब होंगे, आप जलील और रसवा होंगे और मारे खाएंगे, तरीहे बेतरीहे लेंगे। अदालतों से ले लो इंसाफ। अदालतों में इंसाफ मिल रहा है। अगर अदारे रिलीफ देते हैं तो अदालतें रोक देती हैं, अगर अदालत रिलीफ देती है तो अदारे अमल दरामद नहीं करते। ये चल रहा है सिस्टम। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन सा इंसान हूं? मैं तो एक जानवर हूं जो इधर मांग रहा हूं इंसाफ इन लोगों से, इंसानों से। इधर चलाने वाले सिस्टम बैठे हुए हैं ऊपर हलफ, इन्होंने कुरान पे हरफ लिए हुए हैं सारे बैठ के जो बैठे हुए हैं। इनको कुरान पे हरफ लेके क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। ये सारे पार्लियामेंटेरियन ने कुरान पे हलफ लिया है। ये वजीर आजम, ये सदर पाकिस्तान, इन्होंने हलफ लिया है कि गरीब आदमी की मदद करेंगे और ये उसका उल्ट कर रहे हैं। ये ताकतवर की मदद कर रहे हैं, ताकतवर को हर तरह की सहूलत दे रहे हैं। और भाई ऐसा करोगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। ये 2-3 साल के बाद तुम्हारा कोई नाम भी नहीं रहेगा इमरान खान, अगर इसी तरह से गवर्नमेंट चलाई जिस तरीके से चला रहे हो। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया है कि ताकतवर को कोई सजा नहीं है। मेरे केस में जिन लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा किया, परवेज इलाही साहब के बंदे, इनके ऊपर पर्चे होने चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इतनी सजा मिलनी चाहिए जितनी नजायज कब्जा करने वाले को, आम आदमी को मिलती है। क्या ये मुल्क रहने के काबिल है? ये तो ताकतवर की शक्लें देख के इंसाफ कर रहे हैं। कौन का साथ पेश हुआ है जी? ये पाकिस्तान बार का सदर पेश किया। अच्छा, कोई बात नहीं, आप साइड पे हो जाए, केस हम लड़ेंगे आपका। ये हो रहा है इधर इस मुल्क में।
تو بھائی غریب کی کوئی بندہ سننے والا نہیں ہے. اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ پوری قوم کے ساتھ ظلم کریں گے. میرے ساتھ تو کریں گے ہی کریں گے نا. میری ویڈیو شیئر کرنا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے. یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں یہ لینڈ کروزر والے میں ابھی یہ جا رہا ہے سکٹے مار کے جا رہا ہے ادھر. نہ اس کے باپ نے کمایا ہوگا نہ اس نے کوئی مزدوری کی ہوگی. اس کو بنا بنایا مل گیا ہے تو یہ آ کے اوپر ادھر ہمارے ٹیکسوں سے ہو سکتا ہے موجیں کر رہا ہو. یہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ملک ان کا اپنا ہے. ریڈ زون میں سکٹیں کر رہا ہے وہ گاڑی کی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. ظلم کی انتہا ہے اس ملک میں. یہ طاقتور جو ہے یہ تو ان کو سمجھتی کچھ نہیں حکومت کو. دے لیں گے دیں گے انصاف. آپ کو سوچنا چاہیے ایک چھوٹے چھوٹے بچے لے کے میں نے جو جنگ لڑی ہے کیا میرے ساتھ یہ انصاف ہونا چاہیے؟ کیا میں نے جو اپنا حق مانگا ہے کدھر میں نے غلطی کی ہے؟ میں نے مزدوری ان کے لیے کی ہے قبضہ گروپوں کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے؟ میں نے بھائی جس ٹائم زمین خریدی گورنمنٹ آف پاکستان کو میں نے ٹیکس دیا آئین اور قانون کے مطابق. میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی پیچھے. مشتری ہوشیار باش, میں مشتری ہوشیار باش ہوں. مجھے یہ عالمی عدالت بھی غلط نہیں ثابت کر سکتی. میرا آپ سے ساتھ دینا ہے, جتنا زیادہ ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. یہ میری مدد ہے. باقی تھوڑا ٹائم رہ گیا. باقی میری ضلالت ختم ہونے والی ہے. یہ انصاف والی ضلالت. تو میرا اپنے ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, گروپوں میں شیئر کریں. اپنے دوستوں کو بولیں کہ لائیو میں ناصر اگر آیا ہے تو اس کا ساتھ دیں. میرا تو حق بنتا ہے. میرے ساتھ انصاف ہمدردی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. میں اکیلا بندہ لڑ رہا ہوں, ایک یتیم آدمی اپنے حق کے لیے جس کا نہ کوئی والد ہے نہ والدہ ہے. ٹھیک ہے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی میرے دوست بھائی ہیں, جتنے بھی میرے بزرگ دیکھ رہے ہیں, جتنے میری بہنیں دیکھ رہی ہیں, میرا آپ نے ضرور ساتھ دینا ہے. اور جب تک آپ میرا ساتھ دیں گے انصاف کے رستے کھلیں گے, انصاف ملے گا لوگوں کو. ہر آدمی کا حق ہے انصاف. ان کا حق نہیں ہے صرف کہ یہ لوگ طاقتور ہی انصاف لے گا, غریب نہیں انصاف لے گا. غریب کا بھی اتنا ہی حق ہے. لیکن ہم لوگ خاموش ہیں. غریب کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا, مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا. بھائی ادھر طاقتور کو پکڑتے ہیں پورا پاکستان اکٹھا ہو جاتا ہے. ان کی اتحاد ہے آپس میں, ان کا ایک ہے. ان کی نانا بھی, نانی بھی, دادا بھی, دادی بھی سب پارلیمنٹرین ہی تھے جو آ رہے ہیں. اس میں نیا بندہ کوئی نہیں ہے. یہ ابھی میں آپ کو سامنے پارلیمنٹ یہ دکھاتا ہوں. یہ پارلیمنٹ, اس میں میرے کیس پہ طریق التوا جمع ہوئی. یہ اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ. اس میں میری طریق التوا جمع ہوئی ہے. لیکن مجال گئی ہے کہ کسی نے کوئی ایکشن لیا ہو. یہ ہے ٹھیک ہے. تو آپ مہربانی کر کے جتنے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ میرے ساتھ انصاف ہو, میرا حق ملے. میرے کروڑوں کی زمین انہوں نے خرد کرنے کی اگے ناکام کوشش کی اور اپنا اثر سوکھ دکھایا. لیکن میرے ساتھ اللہ, میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں, میرے ساتھ اللہ پاک کی ذات ہے جو میری مدد کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے حق کے لیے جو میں نے سٹرگل کی ہے, جو میں نے لڑائی لڑی ہے آگے سے جو میں نے لڑائی لڑی ہے, میں نے کوئی چھوٹی لڑائی لڑی ہے اس ملک میں. اللہ پاک نے میری ضرور مدد کرنی ہے. میرے بچوں کا حق انہوں نے مارنے کی ہر کوشش کی ہے, اپنا سر سوکھ دکھایا ہے, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے کسی جگہ پہ. انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دن میں آپ کو یہ رپورٹ نظر آئے گی جو ڈی پی او صاحب اب انکوائری کر رہے ہیں, جس میں یہ عارف لالے مسے والے کا جس نے ان کو جیل اسٹامپ کر کے دیا ہوا تھا اور آگے ان کو کر دیا اس نے. آج جو سوال جواب ہوئے, کل میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل کے ساتھ انکوائری مکمل ہو جائے گی. کل پرسوں تک 2-3 دن تک تو میں آپ کے سامنے سارا یہ رکھوں گا کہ یہ بیان ان لوگوں نے ظالموں نے دیے ہیں. ان کا تعلق ہی میری زمین کے ساتھ کوئی نہیں بنتا. میرے بچوں کو ان کے اوپر ترس نہیں کھایا ان لوگوں نے. یہ کلمہ گو ہے, یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بڑے اچھے شریف انسان ہے. کسی پہ ترس کھاؤ, کسی کا حق کھا رہے ہو, چیک کیا ہے آپ نے کہ میں جو تماشے کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں کہ ٹھیک کر رہا ہوں؟ گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی. میرے احتجاجوں کو انہوں نے ڈرامے بازی ڈکلیئر کیا. مجھے انہوں نے ذہنی مریض ڈکلیئر کیا. ڈی پی او گجرات کی رپورٹ کے نیچے سین ہے میں ذہنی مریض ہوں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لکھ رہی ہے کہ میں بلیک میلر آدمی ہوں. کیا میرے بھائیوں یہ بلیک میلر کو گورنمنٹ نہیں پکڑ سکتی, ذہنی مریض کو داخل نہیں کرا سکتی؟ یہ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں, جو میرا رائٹ ہے, جو میرے بچوں کا حق ہے, جس کے لیے میں نے پردیس کاٹا 15 سال.
मेरे वाला साहब ने 25 साल मजदूरी की। कभी आपने देखा दुनिया में कि मैं इनको दे दूं इसलिए कि ये ताकतवर है? ताकतवर खुदा की जात है, उसके आगे कोई ताकतवर नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला इनसे कब्जा लूंगा, पूरी कौम के सामने मैं कह रहा हूं, मैं इनसे पुलिस खड़ी करके कब्जा लूंगा उधर जमीन का। मेरे साथ केस लड़े, आलमी अदालत तक ले जाए, मैं इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला आलमी अदालत तक करूंगा। बेशक आलमी वकील पेश कर लें ये, मैं इंशाल्लाह ताला इनका फिर भी मुकाबला इसलिए करूंगा कि मेरी हक और सच पे लड़ाई है। मेरे पास आइन और कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंट पूरे हैं, मेरे पास आइन और कानून के मुताबिक हर चीज मुकम्मल है। कुरान पे फैसला गया है, ये लोग हाई कोर्ट चले गए। पर्या पंचायत ने फैसला मुकाया, जब पैसे देने का टाइम आया तो हाई कोर्ट चले गए। पाकिस्तान बार के सदर पेश करते हैं, सिफारिशें कराते हैं, और डीपीओ सैयद जफर चट्टा साहब ने कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन नासिर तुम्हारी कर रहा हूं, तो मेरे सके चाचे का इन्होंने टेलीफोन जाके कराया। यानी कि जिस तरह मर्जी ये कर लें, ये इनको ये जमीन नहीं मिलेगी, और मैं कभी भी इनको नहीं कंप्रोमाइज करूंगा, इनसे बेचूंगा नहीं। मैं पूरी कौम से मैं कह रहा हूं, आपने मेरा साथ देना है जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। ये तो इन्होंने मुझे लूट लिया इस मुल्क में टेक्निकली तरीके से। अदालतें रिलीफ दे रही हैं, पहले दिन फैसला आता है तो हंसते हैं, दूसरे दिन फिर रोते हैं तफसीली फैसले पे। अब भाई ये टेक्निकल पूरा सिस्टम चल रहा है, ये टेक्निकल, जिस जज ने ये टेक्निकल फैसला किया उसने 2 दिन फैसले के 4 बजे तक बैठाए रखा, और जिस दिन फैसला करना था उस दिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को केस भेज दिया मेरा। मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास पेश हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने कहा कि आपने सारा केस सुना है, फैसले का टाइम आया, 4 बजे तक आपने टाइम दिया, अब ये आपने इधर भेज दिया हमारी तरफ, लिहाजा आपने क्योंकि पूरा केस सुना है इतना अरसा, अब आप ही इसका फैसला करें। मेरे केस का फैसला कोई बंदा नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मुझे इन्होंने गंदा करने की कोशिश की, शहर में बदनाम करने की कोशिश की, मुझे लूटा। ये है कलमा गो, जो अपने आप को असल कलमा गो कहते हैं, वो ये है। लूटने के बाद ब्लैक मेलर, ज़हनी मरीज और ड्रामेबाज और गलत गलत अफवाहें फैला के पूरे शहर में इन्होंने मेरा नक्शा बदल दिया, मुझे लूट ली है। मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बल्कि मेरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा 22 करोड़ सैयद जफर चट्टा साहब ने रेट लगाया कि ये 22 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, अगर कंप्रोमाइज हो गया तो ये पैसे लोग देंगे, तो उन्होंने उस वक्त रेट लगाया। मेरी आप लोगों से हम्बर रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, थोड़ा टाइम रह गया, खुदा के लिए उठ जाओ, मेरे केस पे उठ जाओ। आज आवाज उठाओगे, कल कोई ताकतवर उठ के आया कि किसी की गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं करेगा इस तरह जिस तरह इन्होंने मेरी जमीन पे ऊपर किया। इन्होंने मुझे मेरा देखा डाटा, मुझे बैकग्राउंड मेरी देखी कि मेरा पीछे कोई नहीं है, तो ये शेर बन गए और मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन मैंने इनको किसी जगह पे गलत में साबित नहीं हुआ, ना ये मुझे कर सके हैं। मैं जितनी बातें कर रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट्री तौर पे कर रहा हूं कि कल को अगर मुझे किसी के सामने पेश करनी पड़े तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। थोड़ी देर इतने ब्रेक में मेरी वीडियो को आपने आग की तरह भराना है, आपने मेरा साथ देना है। थोड़ा सा मेरा टाइम, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि थोड़ा वक्त रह गया, इतना मेरा केस के फैसले शैसले हो चुके हैं, थोड़ी जलालत बाकी रह गई है। एक दिन भी बड़ा मुश्किल है गुजारना नजायज तौर पे, और अपना हक, मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 13 मरले पे गवर्नमेंट काबज है, 39 मरले पे गवर्नमेंट से भी ताकतवर लोग काबज हैं। तो भाई ये क्या होगा? ये जुल्म की इंतहा है, ये बर्बरियत का निजाम चल रहा है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, ये मैं अभी आपको एक और मंजर दिखाता हूं, ये इधर ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी ये प्रेस क्लब है, ये मैं आपको रात का टाइम दिखाता हूं। ये इस जगह पे जिधर ये बोर्ड लटका हुआ है, इसी जगह पे मेरे बच्चे 8 माह तक सर्दी गर्मी बारिश में मैं इधर बैठा रहा, इस जगह के ऊपर मासूम बच्चों के साथ अपने हक के लिए। ये लोग बैठे हुए हैं, देखें ये इन्होंने कैंप शैंप खत्म कर दिए हैं इधर। अभी पहले तो इधर बड़े कैंप लगे हुए थे, अब कैंप वगैरह खत्म कर दिए हैं लोगों ने, वैसे ही बैठे हुए हैं। इधर मैं देखता हूँ मिजाजी मिजाजी इधर बैठते हैं, मैं इधर 8 माह बैठा रहा। मेरा यही मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट मेरे केस का नोटिस दे। आपने हिसाब लगाया होगा कि मेरा सिर्फ ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट, अगर मेरा गलत होता तो मैं अपना केस सुप्रीम कोर्ट क्यों लेके जाता? मुझे पता था कि मेरा ये जो शर कर रहे हैं भाई, इधर गरीब के साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में। माड़ा बंदा अगर फंस जाता है तो उसने अपनी मदद आपके तहत ही केस लड़ना है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला
ضرور میری مدد کرے گا اور میرے بچوں کا حق میں اس طرح نہیں ضائع ہونے دوں گا. میں نے اپنے حق کے لیے جو سٹرگل کی ہے, جو میں نے لڑائی لڑی ہے, اللہ پاک مجھے ضرور انصاف دے گا. اور میرے بچوں کا حق ہے, معصوم بچے ہیں میرے جن کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے. کدھر ہے گورنمنٹ؟ ایجنسیوں کو چاہیے نا, مجھے بتائیں, چیک کریں میرا کیس, ان کے ساتھ میرا کیس بنتا ہے. پاکستان کی ایجنسیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میرا کیس دیکھیں. اگر میرا یہ کیس 100 سال چلانا چاہیں تو بھائی ان کے پاس تو 100 سال چلانے کے پیسے ہیں. انہوں نے کمائی نہیں کی, انہوں نے بزنس کیا ہے اس ملک میں. یہاں میری 2-2.5 کنال زمین ہے, وہاں ان لوگوں کی 400 کنال ہے قبضہ کرنے والوں کی. لیکن یہ شرفا ہے, یہ شریف آدمی ہے, اور میں بلیک میلر آدمی ہوں, ڈرامے باز ہوں. کیونکہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو مجھے بلیک میلر اور ڈرامے باز ڈکلیئر کرنے. ان کو شرم آنی چاہیے, کم از کم اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے عام آدمی کے ساتھ. تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. پورے اوورسیز پاکستانیوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے تھوڑی سی. آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے نا, اگر میرے ساتھ نہیں دیں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا. آپ میری طرح جدوجہد نہیں کر سکیں گے, آپ کوشش نہیں کر سکیں گے کہ آپ اتنا بڑا جہاد کر سکیں آپ جو میں نے کیا ہے. میں نے تو ایک جنگ لڑی ہے اس ملک میں, جس ملک میں انصاف نام کی چیز نہیں ہے. اس ملک میں آج میں حیران ہو گیا ہوں جب فیصلہ آیا سینٹ کے الیکشن کا. تو کوئی الیکشن کرا لیں, جنرل الیکشن کرائیں گے. ان کا دیکھیں کیا اشر ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا انصاف دینے کا. ان لوگوں نے ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ کیا, انہوں نے غریب کے ساتھ کھڑا ہونے کا وعدہ کیا. آج یہ سارے وعدے بول کے سیاستدان ہو گئے ہیں. سیاستدان کا یہ حال ہے, سیاستدان کے ساتھ یہ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے, مجھے آپ کی ضرورت ہے اشد. اور میں تمام جتنے بھی میرے دوست بھائی بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بہنوں سے اپیل کروں گا کہ آواز اٹھائیں. آج آواز اٹھائیں گے. کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, کلمہ گو کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, ظلم کے سامنے کھڑا ہو جائے, اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اس کی طاقت بن جائے, تو کوئی بندہ جرأت نہیں کرے گا. تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ جتنے بھی لوگ میرا ساتھ دیا ہے, جتنے لوگوں نے میری ویڈیو کو شیئر کیا ہے, بہت زیادہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے. آپ ایک مرتبہ جتنے بندے 150-200 بندہ ہے, ایک مرتبہ شیئر کر دیں. کم سے کم 1000 شیئر ہونا چاہیے ویڈیو کا. اور میرا پیج ہے یوٹیوب پہ, میری مدد کریں سارے دوست. جسٹس فار ناصر عوان کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے, اس میں ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں یوٹیوب سے آؤں. لوگ مجھے لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں, تو آپ میری مدد کریں نا اس میں. کہ میرے پاس تقریباً 482-83 بندے ہو گئے ہیں, باقی 500-550 بندہ رہ گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جسٹس فار ناصر عوان سے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو, اور شامل ہونا ہے تاکہ انصاف کے لیے ہم ساری لڑائی کر سکیں. اور میں کسی بھی اوورسیز پاکستانی کا, جب میرے ساتھ تو ہزاروں لوگ اٹیچ ہیں جن کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی, تو مجھے اندر سے دکھ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے, باہر پردیس کاٹ رہا ہے, تو وہ جب پاکستان میں آئے گا, جو زمین خریدی ہے اس پہ قبضہ کر کے کوئی بیٹھا ہوگا, تو پھر عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے. تو عدالتوں پہ بھائی کدھر انصاف مل رہا ہے؟ یہاں تو 6 سال سیٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں کیس. میرے 2 دفعہ عدالتوں میں کیس غائب کیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا سوشل میڈیا پہ. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتی تو کبھی میں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ نے میرا جس طریقے سے ساتھ دیا ہے, اللہ پاک اس کا اجر دے گا. میں ایک غریب یتیم آدمی اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں, لیکن آپ یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر دیں, یہ ظلم کر دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹوں گا ان سے کسی بات سے بھی. میں ان کو ساری دنیا کے سامنے سزائیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو دلاؤں گا, چھوڑوں گا نہیں میں ان لوگوں کو. قانون ہے, لیکن قانون کو سمجھنے کے لیے تقریباً 30 سال چاہیے. میرے 20 سال ہو گئے, 10 سال مجھے باقی رہ گئے. اللہ پاک ان کو تباہ برباد کرے جنہوں نے آئین اور قانون بنایا ہے. یہ وزیر قانون, یہ میں چاہتا ہوں یہ وزیر قانون والی سیٹ ختم کرنی چاہیے. جب ملک میں قانون ہی نہیں ہے بھائی, تو وزیروں کی تنخواہ کیوں دے رہے ہو؟ ملا ہے کوئی قانون, وزیر قانون بنائے ہوئے ہیں؟ کدھر ہے فروغ نسیم میرے کیس میں؟ بتائیں نا مجھے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے کہ قبضہ کرنے والوں کے حق میں ہوا ہے. بالکل ادھر کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ پاک ضرور انشاءاللہ تعالیٰ سنے گا. حسین بھائی آپ کا بھی شکریہ, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. میرے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں, تو میرے لیے آواز آپ نے فرض بنتا ہے, ایز اے کلمہ گو آپ کا فرض بنتا ہے. میں نام بھی کہوں ویڈیو شیئر کریں, تو آپ اگر مسلمان ہیں, کلمہ گو ہے, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ میرا ساتھ دیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ویڈیو تو شیئر کر سکتے ہیں نا, گروپوں میں کریں, اپنی ٹائم لائن پہ کریں.
ताकि मेरी बात पहुंचे। कल इमरान खान ले नोटिस सुप्रीम कोर्ट, बुलाए इनको, कल बुला के इनसे पूछे कि क्या तल्लुक है इनका मेरी जमीन के साथ, कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो केस किस चीज का है। इनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई ऐसा मलकीती सबूत है। ये सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि ये परवेज इलाही साहब के बंदे हैं। तो परवेज इलाही भी साहब ने भी देख लिया होगा, सारी दुनिया के सामने पूछा नहीं इन लोगों से अपने से। इनको पता है कि इनके बंदे गलत हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं अकेला नहीं, फैक्ट्री और भी बड़े बंदे गए हैं परवेज इलाही साहब के पास इन बंदूक का लेके शिकायतें जिनने मेरी जमीन पे कब्जा की है। तो भाई मैं अकेला नहीं हूँ, फैक्ट्री इनका पता है परवेज इलाही साहब को ये लोग कैसे हैं। तो कोई करेंगे नहीं, क्योंकि धड़े के पक्के हैं तो कर रहे, धड़ा पक्का, मेरा भी बड़े पक्के हैं धड़े के। अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है तो मेरी अल्लाह पाक की मदद करेगा, मेरी को सियासतदान मदद नहीं करेगा। और इनकी आप सियासत का हिसाब लगा लें कि इनकी सियासत के कदर गरीब के साथ खड़ी है। ये अपने ही बंदे का दफा करते हैं और करेंगे दफा। इस केस में आप करके मुझे दिखाएं दफा कितना कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह ताला इनको बंदों को सजाएं मिलेंगी परवेज इलाही साहब को। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने तकरीर शुरू की है, ये अब मैं प्रेस क्लब के सामने। इंशाल्लाह ताला किसी पैसा बेशक अरबों रुपए मिले मुझे दे दें, जो मर्जी है मुझे मराद दे रहे हैं, मैं इनको कभी इनके साथ कंप्रोमाइज इन बंदों के साथ नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी जमीन के ऊपर नजायज कब्जा किया और मेरी फैमिली को दर बदर के धक्के खाने के छोड़ दिए। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैंने अपने बच्चों के लिए जो बनाया उस हिसाब से मैंने अपने बच्चे पैदा किए। मुझे तो नहीं पता था ये मुझे लूट लेंगे या मेरी जमीन कमर्शियल होगी। इन लोगों ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है। अल्लाह पाक मैं क़यामत वाले दिन भी इनको माफ नहीं करूंगा। इन लोगों को, ये इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने जालिम ये लोग हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है। मैं जरूर आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे आप हैं भाई, मेरे आप हैं बहन, मेरा आप है सारे कबीला, मेरा साथ देंगे। थोड़ा टाइम रह गया मेरा, बस मेरे फैसले हो गए, तर्जमा बाकी रह गया। वो मैंने बैठ जाना फैसले लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और उस वक्त तक मैंने उठना नहीं जब तक पता नहीं चलना कि परवेज इलाही के बंदे आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। ये टेक्निकली फैसले करके गरीबों को जलील कर रहे हैं। अपील दर अपील फलां अपील, निगरानी अपील, दूजी अपील। बख्त मीर भाई बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी मेरे आप साथी हैं, दोस्त हैं, मैं तमाम दोस्तों से कहूंगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, खुदा के लिए मेरा साथ दें, मेरा साथ दें, आवाज उठाएं, आग की बात करें। अगर आपको पता है कि मैं कर रहा हूं तो आपकी खामोशी लम्हे फिक्री है। अगर पता है आपको कि मैं हक पे हूं तो मैं 100% हक पे हूं, तो मुझे ये छेड़ नहीं सकते, क्योंकि गलत नहीं कर सकते ना। मैंने को रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदियां, रेवेन्यू रिकॉर्ड, फैसले, मौसम का फैसला, एंटी करप्शन का फैसला, ये मैंने घर बैठ के नहीं बनाए भाई, ये इन अदारों ने किए हैं जिनको गरीब की मदद करनी चाहिए। ये उल्ट हो गया काम सारा, ये सारे ताकतवर की फेवर में। और शुरू से जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है 1947 से लेकर 74 साल 73 साल हो गए, ये सब ताकतवर की फेवर हो रही है। ये इकट्ठे हो गए ना ताकतवर, आज ले गए सेनेट का इलेक्शन, ये सारे इकट्ठे हो गए थे। और भाई ये इकट्ठे हैं, ये जनरल इलेक्शन भी ले जाएंगे तुमसे, और तुम्हें पता नहीं चलेगा इमरान खान कि ये किया क्या है इन लोगों ने। और जो आप लोगों ने किया है और आपकी टीम ने हम लोगों के साथ किया है, इससे बुरा होगा आपके साथ आगे जाके। मैं भी पीटीआई का सपोर्टर हूं, मैंने वोट दिया है ना पीटीआई को। मुझे सबसे ज्यादा तब्दीली की जरूरत थी। मैंने नून लीग की गवर्नमेंट देखी, मैंने काफ लीग की देखी, मैंने मुशर्रफ की देखी, मैंने पीपल पार्टी की देखी, सारी गवर्नमेंटें मैंने देखी। मुझे किसी ने इंसाफ नहीं दिया, तो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद इस बंदे पे थी, इमरान खान पे। लेकिन कब्जा ग्रुप के सामने इसने सरेंडर कर दिया इमरान खान ने। ये सिस्टम भाई कोई आम आदमी नहीं चला सकता। मैंने तो बड़ा पैसा लगाया, मेरा तो 40-45 लाख रुपया बर्बाद हुआ है सारे सिस्टम पे। और भाई मेरे पास तो चलो मैं कोशिश करके अपना केस इधर तक ले आया, वो दूसरा किधर जाएगा। अब अगर आपका 2 करोड़ की जमीन है तो 2 करोड़ आपके पास होना चाहिए केस लड़ने के लिए, तो अल्लाह पाक मदद करेगा। इतनी दुआएं हैं। किसी बंदे ने गलत कमेंट्स किया है मेरे नीचे? नहीं किया। सारे हमदर्द और दर्द दिल रखने वाले बंदे हैं जो मेरे साथ शामिल हैं। ये मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, पूरी कौम की फैमिली है। ये बच्चे पूरी कौम के मुस्तकबल है, इनका सोचना चाहिए आपको। आपके बच्चे एक दिन स्कूल ना जाए तो फिक्र लग जाती है कि इनकी पढ़ाई का हर्ज हो गया। मेरे बच्चे तो 3 साल से स्कूल नहीं गए। सोचना नहीं चाहिए? ये ज्यादती है। मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी का इन्होंने खुर्द बुर्द करने की कोशिश की महकमा गुजरात ने, और इन लोगों ने जो परवेज इलाही साहब के मल्ली साहब और दराजी साहब हैं, इनका अब शुरू से मेरी जमीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके तल्लक फरिश्तों के साथ भी हैं, ऊपर फरिश्तों के साथ भी इनकी लैम सिद्धि है इनके मुताबिक। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। मैं आपको इंसाफ लेके दिखाऊंगा इस मुल्क से। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मौत से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता।
इस कौम के सामने। ये तो हजूम इकट्ठा है, हिते पे हजूम है। कोई एक खबर आती है, 2 दिन के जमीर जागते हैं, बाद में फिर जमीर मर जाते हैं। कोई बड़ा हादसा होता है, 3 दिन तक जमीर जागेगा, फिर मुर्दा जमीन है। जिंदा लाशों वाला किरदार अदा किया इन लोगों ने। अगर इकट्ठे होकर खड़े हो जाते, इनकी क्या जरूरत थी मेरा केस 21 साल तक चलता, या ये कब्जा करके बैठते ये लोग। इनको पूछा ही नहीं किसी ने। ये कहते हैं जनाब सड़क बेच गया, ये कर गया, वो कर गया। और भाई तुमने किधर से जमीन खरीदी है? तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है? ये उलझा देते हैं। ये अदारे सिर्फ उलझाने के लिए बैठे हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को होश के नाखन लेने चाहिए। आज मेरे साथ ये हुआ है, कल किसी और अमीर के साथ नहीं होगा। अमीर ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ इधर पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। उसके भाई इतने तल्लक हैं, उसका सर्वर भी अपना बैठा हुआ है, तो उनका लैपटॉप भी अपना बैठा हुआ है, तो उनका सारे अपने बैठे हुए हैं। उसकी ताकतवर ओवरसीज की जमीन पे कब्जा नहीं, माड़ी ओवरसीज की जमीन पे कब्जा होगा, जिसका कोई आलिम वाली नहीं है। वो होगा, वो मेरे साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। ताकतवर नहीं करेगा, मेरा साथ देगा। तो मुझे आप लोगों का प्यार मोहब्बत, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया है, आपने आगे भी मेरा साथ देना है इंशाल्लाह ताला। मैं इनको पाया तकमील तक अपने केस को पहुंचाऊंगा। मेरा केस पाकिस्तान की इंटरनेशनल एजेंसियां भी मेरा केस देख रही हैं। पाकिस्तान के जितने तमाम हेड हैं, डीजी हैं एजेंसियों के, उन तक मैंने अपना केस पहुंचाया है। सारी तफसील लिखी है, इन लोगों का हवाला दिया है, नजायज कब्जा करने वालों का दिया है, महकमा जो कर रहा है उसका दिया है, जो मुलव्वस है उसका दिया है। मैंने एजेंसियों को खुद बताया है कि ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। आगे देखेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह ताला। मैं अपने हक के लिए लड़ा हूं। जितना मुझे इन्होंने बदनाम करना था किया है, मुझे लूटने के बाद मुझे बदनाम भी किया है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इनको और ताकत दे मुझे बदनाम करने की। जितना मर्जी है मेरे बारे में कर ले, मैं इंशाल्लाह ताला इनसे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये मेरा पूरी कौम के साथ वादा है। मैं अपनी किसी ट्रस्ट को जमीन दे दूंगा, मैं किसी गरीब में बांट दूंगा, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं अपने हक के लिए, मुझे 22 करोड़ इनके ऊपर सजाओं के ऊपर गर्क करना पड़ा तो इंशाल्लाह ताला मैं लगा दूंगा। मैं 22 करोड़ के ऊपर भी इनको सजाएं दूंगा, क्योंकि इनके लिए भी कानून है ना। अगर ये उठ के नजायज कब्जा करेंगे तो इनको हुकूमत नहीं पकड़ेगी। मैं इंशाल्लाह ताला इनको पकड़ूंगा। नजायज कब्जे का केस साबित हो चुका है कि इनका मेरी जमीन के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो ये ज्यादती है। इंशाल्लाह ताला मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मेरी जिंदगी पता नहीं कितने दिन है, एक दिन मैं जीता हूं, 2 दिन मेरा कीमा करता है कोई इधर, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है। मुझे इस बात का फख्र है, मेरी फैमिली, मैं, हम हक और सच्चाई पे लड़े। सारी दुनिया के सामने खोल के केस रखा है आपके सामने। कोई पशीदा चीज नहीं है। एक चीज आती है, मैं उसी वक्त आपके साथ शेयर करता हूं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने इंसाफ लूंगा, लेकिन आम आदमी को मेरी तरफ भाई इंसाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ने सवाए फोटोएं बनवाने के कुछ नहीं किया। कोई इदारा नहीं बनाया। अगर कोई बनाया है तो मेरा केस दें। अगर मैं गलत हो जाऊं उस इदारे में तो मुझे फांसी पे लटका दें। मेरा मुतालबा करें कि फांसी पे। जो सिर्फ खामोशी है ये मुनाफिकत है। देख के पता चल जाए कि बंदा जुल्म हो रहा है बंदे के साथ, और आपका दिल तस्लीम करे कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, फिर चुप रहना मुनाफिकत है। तो कोई बात नहीं, मैं कोई सियासतदान तो नहीं हूं, मैं तो कोई यतीम था आदमी हूं। अपने बच्चों के लिए फाइट कर रहा हूं, लड़ रहा हूं अपने हक के लिए। मुझे कल को मेरा क्या अशर होता है, मुझे नसीब होता है जिंदगी सुकून से गुजारनी, या मेरा नसीब नहीं होता, ये मेरे अल्लाह को पता है कि आगे मेरे साथ क्या होता है। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कर्म फजल से मैं इंशाल्लाह ताला आज तक इनसे जीता हूं, आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं इनसे जीतूंगा। आपने मेरा जरूर साथ देना है, इंसानियत की खातिर आपने मेरा जरूर साथ देना है। एक आम आदमी के लिए आपने जरूर मेरा साथ देना है, ताकि मेरे साथ इंसाफ हो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। बहुत आपकी मेहरबानी। मेरी वीडियो को जितने दोस्त हैं सब ने शेयर करना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर अवान, जो अरसा 20 साल से पाकिस्तान में इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, और जो मैंने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की उसकी जो मुझे इन्होंने सजा दी है कब्जे की शक्ल में, और मैंने सारी जिंदगी मजदूरी की बाहर अपने बच्चों के लिए जो बनाया, इधर मुझे पाकिस्तान में लूट लिया गया। मेरा कोई भाई परेशानी हाल नहीं है इस मुल्क में। मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरे साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देखते जाएं कि एक कब्जे का केस है पाकिस्तान में। मैं आप लोगों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील करूंगा कि पाकिस्तान में आप कब्जे का केस ना लड़ें। मेरा जो अशर हो रहा है वो आपके सामने है। मेरे केस पे अब डीपीओ साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कल वो हाफिज पेश हुआ है और उसने कहा है कि मैं बयान कलमबंद नहीं कराऊंगा। वो
गुनाहगार है मुकम्मल तौर पे मेरे केस में, मास्टरमाइंड है, लेकिन उसने बयान कलमबंद नहीं कराया। वो कह रहा है कि सब इकट्ठे होंगे तो मैं बयान कराऊंगा। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अभी वो बयान दे के गया है, जो मेरी जमीन पे जिसने स्टाम्प करके ये चौधरी परवेज लाई साहब के बंधु को दिया, आरफ लाले मुझसे वाला, डीपीओ साहब ने उसका बयान पढ़ा है, उनके पूरे स्टाफ ने उनका बयान पढ़ा है उस बंदे का। उसमें वो कह रहा है कि ये दराजी मलिक को मैंने प्रॉपर्टी बेची नहीं है, जिन्होंने मेरी जमीन पर नजायज कब्जा किया हुआ है। अगर ये लोग आज से 20 साल पहले ये बयान ले लेते तो कम से कम मेरे 20 साल तबाह ना होते। मैंने जो एक स्ट्रगल किया आप लोगों के सामने, आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए फाइट कर रहे हैं। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 5 मिनट का मेरा केस है, मेरा जलील करके मुझे इन्होंने रख दिया। कभी किसी जगह पे कर देते हैं रेट, कभी किसी जगह पे कर देते हैं, कभी किसी जगह पे। भाई इस मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और मैं तमाम उन लोगों से अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी बिल्कुल इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी वीडियो देखें, और अगर किसी ने इंसाफ लेना है ओवरसीज पाकिस्तानी ने तो मेरी जरूर वीडियो देखे। मैंने तो बड़ी बहादुरी से इधर तक अपना केस पहुंचाया है। अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है, आप लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला फतह के करीब हूं। मैं इंशाल्लाह ताला देख रहा हूं ये डीपीओ साहब आप इंक्वायरी करेंगे, सारे हकायक सारी दुनिया के सामने इसलिए आएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये जो फंसाते हैं अदालतों में, अदारों में गरीब आदमी को, तो गरीब आदमी की किसी जगह सुनी नहीं जाती। आज सेनेट के ये अदम एतमाद का हुआ है, इमरान खान साहब के ऊपर लोगों ने एतमाद किया है। इमरान खान साहब आपने इंसाफ के नाम पे वोट लिया है। ये मुल्क में क्या हो रहा है? ये नफसा नफसी का आलम चल रहा है। ये लोग अपने अपनी कर रहे हैं, सिस्टम को चला रहे हैं। ये किसी सियासतदान को, किसी आम आदमी के साथ कोई गरज नहीं है। वो मरता है, उसे को लूटता है। इन लोगों को जब बड़े ताकतवर को लूटता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर ये मेरे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आगे वाले हालात में आपको बताता हूं क्या होने जा रहे हैं। आपने सिर्फ मेरी वीडियो शेयर करनी है। मैं सिर्फ आपसे वीडियो शेयर की मदद मांग रहा हूं ताकि मेरी आवाज इन जालिमों तक पहुंचे जो बैठे हुक्मरान है, हुकूमत कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि एक आदमी को इंसाफ दे सके। मैंने इन लोगों, हुकूमत ने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की, इमरान खान की हुकूमत ने। ना इनका कोई पीटीआई का बंदा बात करने के लिए तैयार है मेरे केस के ऊपर। मैंने अपनी मदद आपके तहत इधर तक केस अपना बचाया है, अपनी मदद आप तक। क्या ये मुल्क है? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दांतों के लिए जलील होने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की इस मुल्क में। मेरा आप अशर देखने की क्या हो रहा है कि मैं बच्चों की तरह, मेरे बच्चे जलील हो गए हैं रोडों पे अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए। आप लोग उठेंगे नहीं, आप लोग मेरी आवाज नहीं उठाएंगे, आप जब तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। आज ये इलेक्शन हुए हैं, आज इत्मीनान का इजहार किया है। इमरान खान साहब वो विजन किधर गया आपका? वो 90 दिन में आपने करप्शन खत्म करनी थी, वो नहीं की। चलो करप्शन चलती रहने दे आप, लेकिन गरीब आदमी के साथ आपने इंसाफ का जो वादा किया वो किधर गया है? हम तमाम लोग जो है देख रहे हैं कि बंदा जलील हो रहा है, पूरी कौम देख रही है। मुझे लाखों की तादाद से मेरी वीडियो वायरल हो रही है। मेरा हक नहीं बनता? अपने बच्चों का हक मांगो इनसे। अगर अभी पर्चे होंगे इन लोगों के ऊपर, इंशाल्लाह ताला जो होंगे, इंशाल्लाह मैं अपनी जमीन का बार बार कह रहा हूं कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तो मैं सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं ना। अगर मैं करूंगा तो मैं सारी दुनिया का मुजरम हूं। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इनसे के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अब जब इनसे ऊपर पर्चा होगा ये मल्ली साहब के ऊपर और दराजी साहब के जो बच्चे हैं, जो इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला पर्चे मैं करवाऊंगा इन लोगों से। मेरा ये 22 करोड़ इनके ऊपर अगर लग गया ना, इस जुल्म के खिलाफ जो मैंने आवाज उठाई है, तो मैं इंशाल्लाह ताला लगाऊंगा इनके ऊपर। इन्होंने मेरा लिहाज नहीं किया छोटे छोटे बच्चों का, मैं भी इनका लिहाज नहीं करूंगा। तो जब मैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे ताकतवर। ये जनाब काफ लीग के हैं, ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये फलां हो रहा है, ये टमकान हो रहा है, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे ताकतवर। ये आगे जब जाएंगे, जब पकड़ेंगे इनको, तो फिर हाई कोर्ट इनको स्टे देगा, जमानत देगी, सुप्रीम कोर्ट जमानत देगी, दुनिया इनको जमानत देगी। ये बैठे हुए हैं ऊपर, जज बैठे हुए हैं इनको जमानत देने के लिए। एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बंदा मेरे साथ फाइट कर रहा है अदालतों में, बिला जवाब, बिला मकसद। सिर्फ ये है कि मेरा कोई आलिम वाली नहीं है इस मुल्क में, मेरे साथ को खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। डीसी साहब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मुकर्रर किया मेरे केस में। डीपीओ साहब मेरा खुद केस सुन रहे हैं, आरपीओ साहब ने मेरा केस सुना, कमिश्नर साहब ने मेरा केस सुना, चीफ सेक्रेटरी ने मेरा केस सुना, वजीर आजम तक मैं अपना केस लेके गया, वजीर आला तक मैं अपना केस लेके गया।
आईजी को मैंने अपना केस सुनाया। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में मेरा 6 साल केस चला। एंटी करप्शन में मेरा 8 साल से मामला चल रहा है, आज भी चल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, मोसब पंजाब, डीसी गुजरात की अदालत में, डॉक्टर कलेक्टर, आप देखिएगा मेरा केस देखिए मैंने कितनी फाइट की है, किधर से मैं पैसा लेके आऊं। अब मैं अपने बच्चों को डाकू पे लगाऊं कि डाके मारे, वो लेके आए पैसे, तो मैं इधर केस लड़ूं। अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, ये लोगों के गरीबों के लिए सिस्टम बनाया है। मैंने इंशाल्लाह ताला इनको सारी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। जो चौधरी परवेज लाई साहब के बंधु, चौधरी परवेज लाई साहब, आपके तो छोटे छोटे बच्चे आपने भेजे हैं कौमी असम्बली में लोगों की खिदमत के लिए, तो आप उनको क्या खिदमत दे रहे हैं, सिला क्या उनको बता रहे हैं कि कैसे खिदमत करनी है? क्या अपने बंधु को अगर कोई ज्यादती कर रहा है, किसी के गरीब के साथ यतीम का माल हड़प कर रहा है, तो उसके साथ आप खड़े होंगे? क्यों उस गरीब के साथ खड़े होंगे जिसे इन्होंने लुटा खरबूपतियों ने? मैं इंशाल्लाह ताला अपने केस को मुफ्त के अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा ताकि सारी दुनिया देखे मेरे साथ क्या हो रहा है। इंसाफ के नाम पे तमाशा बना दिया गया मेरे केस को। छोटे छोटे मेरे मासूम बच्चे जलील हो गए हैं, इतनी प्यारे मेरे बच्चे हैं। मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूं, भाई ये आपके भी बच्चे हैं पूरी कौम के। आप जब तक मेरा साथ नहीं देंगे, जालिम कभी नहीं रुकेगा गरीब के साथ जुल्म करने से। कितने कितने वाकयात हो रहे हैं, कोई है बंदा कोई दारा नोटिस ले रहा है। मैं चीफ तक 2 मरतबा मैं गया हूं सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस का नोटिस लिया। इमरान खान कब्जे का केस मत लड़े। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अगर कोई जमीन घर पे जायदाद पे कब्जा करता है उसे असल पेपर दें और बाकी नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करें, ताकि आप गरीब है, आप क्या कोई सियासी पार्टी नहीं है आपकी, आप लोगों को चाहिए हमारा साथ दें। ये देखें कितनी हमने स्ट्रगल की है। ये कोई छोटा काम है इस मुल्क में लड़ना केस? यहां तो 6 महीने आप अदालत में जाएंगे तो वापस आएंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो चुका होगा। बाद में आप 6 साल उसके लगाएंगे तो वो कर्जा अदा करेंगे। 6 महीने में आप गए हैं इस सिस्टम में। ये दलील में इंसाफ देंगे। ये तो एक जज फैसला करता है तो दूसरा उसको स्टे दे देता है। एक अदालत रिलीफ देती है तो दूसरी अदालत स्टे दे देती है। एक अदालत फैसला करती है दूसरी मुअत्तल कर देती है। यहां भाई ये सिस्टम चल रहा है, या केस खेला जाता है। मेरा निजायज तौर पे ये केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का केस, कब्जे का केस। मैं आज इन कब्जा करने वालों से, ये चौधरी परवेज लाई साहब के बंधु से जीत चुका हूं केस। अभी मेरा 4 जगह पे केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है मेरा केस, लेकिन वो मेरा प्रॉपर्टी का केस या कब्जे का केस नहीं है। ये लोगों को बचाने के लिए जो हुकूमत ना इस किस्म के लोग बैठाए हुए हैं, इसने इत्तेमाद का वोट मिला है, बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने दिया है। चलो ये 5 साल अपने मुकम्मल करें। इमरान खान साहब, आपने तो लोगों से इंसाफ का वादा किया, आप लोगों को ख्याल नहीं करना चाहिए? आपके जो बैठे हुए हैं, आपने बैठाए हुए हैं, आपकी कमीना को कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझे नहीं जानता, लेकिन आगे इनके तादी मेरी जमीन के ऊपर काबज है, तो इनका जब मान इधर डोल जाता है, जब तादी आ जाते हैं, तो फिर ये देखते हैं कि हुकूमत ना टूट जाए, ये गलत ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। बेशक खुदा नाराज होता है तो हो जाए। मैंने अपना केस इनके सामने लड़ा है। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, जो दर्द दिल रखने वाले हैं ना, वो पहले दिन से डे अवर से मेरे साथ हैं। तो जो तमाशा देखने वाले हैं वो आते जाते रहते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक तमाशा बना दिया गया है इस मुल्क में। मेरे इंसाफ का, मैं जब इंसाफ इधर से मांगूंगा मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा। ये ताकतवरों के लिए सिस्टम पूरा बैठा हुआ है, ताकतवरों की हर जगह पे मदद हो रही है। और ओवरसीज पाकिस्तानी का हम नाम तो ले रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, फलान है, अरबों रुपए भेज रहे हैं, लेकिन इनको एक ओवरसीज को, ये पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं दे सके। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके ना सजा दिला सके हैं, ना गलत साबित कर सके हैं, ना झूठा साबित कर सके हैं। सिर्फ नारे और तस्वीरें इनकी देख लें, बड़े बड़े आईकॉन से ये तस्वीरें बना के, और भाई जो तस्वीर इनसे बनाता है उसकी जमीन पे कब्जा नहीं करते। जो इनके करीबी हैं उनकी जमीन पे कोई नहीं कब्जा करता। गरीब बंदे का मसला है इस मुल्क पाकिस्तान में, सिर्फ गरीब आदमी का मसला है। ये 250-300 बंदा आप मेरे साथ हैं। अगर आप मेरी वीडियो ना शेयर करें तो ये मेरे इस जो लड़ाई है मेरी, इसके साथ ज्यादती है। जो मैं अकेला भाग रहा हूं ये ज्यादती है। मैं एक आम आदमी होकर मैंने एक जंग लड़ी है इन ताकतवर के सामने। यहां मेरी 2.5 कनाल जमीन है, वहां परवेज राय साहब के बंधु की 400 कनाल जमीन है। तो भाई मेरा और इनका लेवल तो देखें। तो मैं लड़ रहा हूं तो मुझे किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। कल वो बयान दिया वो आरफ लाले मुसे वाले ने मैं लाले मुसे वाले के अवाम, जो मेरे जितने दोस्त हैं फेसबुक फ्रेंड पे है, मैं उनको कहता हूं कि लालाजार कॉलोनी में रहता है ये आरफ। आप चेक करें जाके, ये आरफ मुगल वाला अब्दुल अजीज
इससे इंटरव्यू लें, इनसे पूछें कि अगर तुमने जमीन नहीं बेची उन लोगों को, मल्ली और दराजी कंपनी को, तो भाई तुमने नहीं बेची, तुमने बयान नहीं दिए, तो तुमने स्टैम्प क्यों करके दिया उनको? ये सिर्फ जाने के लिए, ये सिर्फ दलील करने के लिए मेरे साथ ये किया गया, लेकिन मैंने इनका दर्द का मुकाबला किया है। सुप्रीम कोर्ट तक मैं इनको लेके गया हूं। इनका किसी जगह पे साबित नहीं कर सके, ना इनके पास कोई रजिस्ट्री है, ना इंतकाल है, लेकिन इनके पास ये है कि ये परवेज राय साहब के बंदे हैं। तो मैं तो भाई अपना अकेला बंदा हूं, मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में, ना मेरी कोई जमात है, ना मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला है। और मैं तमाम उन लोगों से अपील करूंगा कि मेरे साथ जो हो रहा है, बड़ी बहुत तगड़ी नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। आप अगर खड़े नहीं होंगे, मैंने तो बड़ा बहादुरी के साथ इनको एक्सपोज किया सारी दुनिया के सामने। इन्होंने मुझे हर जगह पे झूठा ज़हनी मरीज इंतजामिया को लगा के साथ, पुलिस को इंतजामिया लगा के साथ, ज़हनी मरीज, ब्लैक मेलर, ड्रामेबाज, दरखास्तबाज, ये लकबात मुझे अदा किए हैं इन्होंने। क्या मैं इनके लिए गया था प्रदेश? क्या मैं मजदूरी इनके लिए कर रहा था कि जब मेरी जमीन कमर्शियल होगी तो मल्ली साहब और दराजी साहब को मैं दे दूंगा और बैठ जाऊंगा घर मुंह बना के कि जनाब लूट रही है मुझे, मैं ना किसी का खाऊंगा तो ना अपना किसी को खाने दूंगा। ये इंशाल्लाह ताला अभी इनके ऊपर पर्चे होंगे और मेरा ये 20 साल का हर्जाना देंगे, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री तौर पे मौजूद है कि इतना मेरा खर्चा इन्होंने करवाया नाजायज तौर पे। मैं इंशाल्लाह कंप्रोमाइज नहीं करूंगा पूरी कौम से। मैं कह रहा हूं 400 बंदा हो गया तकरीबन। मेरी आप वीडियो को 2-2, 3-3 ग्रुपों में शेयर करें, मेरी आवाज बने आप। मेरा केस इन्होंने मजाक बना के रख दिया है कि गरीब आदमी का, यतीम आदमी का ये माल खा रहे थे, मैंने इनको खाने नहीं दिया। मेरी डीपीओ साहब से 4-5 दिन से मुलाकातें हो रही है मुसलसल, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, पुलिस वाला पेश नहीं हो रहा। पुलिस वाले को लेटर लिखा है दोबारा, पहले उसको सस्पेंड किया, फिर उसके ऊपर उसको फिर पेश नहीं हुआ। उनको कहा है डीपीओ साहब ने कि इसको पकड़ के पेश करें, नहीं पेश हुआ। उस दिन उसने बयान देना था जिस दिन हाफिज ने बयान दिया है, हाफिज भी बयान नहीं दे रहा। आप देखें, साहब लगाएं कि हो क्या रहा है। अभी वो पुलिस वाले को लेटर लिखा गया है कि पुलिस वाले को पेश करें। जब पुलिस वाला पेश होगा, हाफिज पेश होगा, आरफ लाले मुसे वाला पेश होगा। पटवारी जो बयान दे के गया है, पटवारी ने गलत तशरीह की है फैसलों की और बयान देगा डीपीओ साहब के, क्योंकि वो पटवारी इन्वॉल्व है, वो केस में चौथा बंदा है ये सारे मैटर में। तो भाई जब चारों को पकड़ेंगे, इनके खिलाफ पता चलेगा कि इनका मेरी जमीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो मेरी जो जलालत आप लोगों ने देखी है, जो मैं टैंकियों पर चढ़ा हूं, जो मैंने धरने दिए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? कसूरवार उनका कौन है? मैं तो हर जगह पे जाता हूं। अभी मेरा मंडी बावलदीन वालों ने मेरे केस का नोटिस लिया, शायद रजा रांझा साहब ने, साजिद तार साहब ने, अबू सफियान साहब ने मुझे मंडी बुलाया, उन्होंने ओवरसीज फोरम मंडी बावलदीन ने। मुझे उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में हम इंशाल्लाह ताला बार के सदर पेश करेंगे इस केस में। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि अब मेरा केस का फैसला होगा। इस तरह नहीं होगा जिस तरह मेरे साथ गुजरात में हो रहा था। मैं तो जिला चेंज करके गया हूं दूसरे जिले में, उनसे मैंने जाके मदद मांगी है। यहां तो मुर्दा, ये जिंदा लाशें चल रही हैं, कोई किसी के हक में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तमाशा देखते हैं, सारे तमाशा देख रहे हैं। क्या ये इंसाफ का निजाम है? 400 बंदा है। मेरी आपसे हाथ बांध के अपील है, 400 बंदा मेरी वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें आप, 450 हो गया, कि ताकि मेरी आवाज इमरान खान साहब तक पहुंचे कि तमाद का भाई वोट लिया है, आगे को कारकर्दगी तो दिखाओ। इमरान खान साहब को पूरी कौम इनको टेल लगाए, इमरान खान साहब को बोले कि इमरान खान साहब आपने नासिर के साथ इंसाफ करना है, अगर नासिर गलत है इसको लटकाएं, इसको सजा दें। और अगर ये बंदा हक पे है और कोशिश कर रहे हैं इंसाफ के लिए, तो क्यों इतनी ज्यादती हो रही है? क्योंकि केले है जी। मेरा एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मेरी जमीन पे इधर गुजरात में कब्जा है, फ्रूट मंडी गुजरात का फ्रंट सारा मेरा है, जिधर मेरा 14 साल कब्जा रहा है। मेरी पास रजिस्ट्री है उसकी, मेरे पास उसका इंतकाल पास है, मैं उसकी जमाबंदियों में मालक आ रहा हूं। मैंने उधर 4 दीवारी बनाई, गेट लगाया, सफेदे और पॉपुलर के लाखों रुपए के मेरे दरख्त चोरी करके ये ले गए 4 बंदे। इनका ना मेरी जमीन के साथ तल्लक था, ना वास्ता था। मैंने अपने वो दरख्त लगाए, 11-12 साल बाद ये उठा के ले गए उधर से दरख्त काट के। इनका लाखों के मेरे दरख्त हैं, चोरी करके ले गए। ये वर्दी में पुलिस वाले ने सारा तमाशा किया मेरे केस में, वर्दी पहन के मेरी जमीन पे इसे कब्जा कराया। मैंने डीपीओ साहब को सारी तफसील बताई है, इनके बयान सारे मैंने उनको पढ़ाए हैं कि जनाब ये देखें एंटी करप्शन में इन्होंने क्या बयान दिया है, लाहौर एंटी करप्शन में इन्होंने बयान क्या दिया है, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में इन्होंने क्या बयान दिया है, डीसी के दफ्तर में क्या बयान दिया है, कमेटियों में क्या बयान दिया है, आरपीओ के सामने क्या बयान दिया है।
एडिशनल DIG मेरी जमीन पे आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने रिपोर्ट मेरे हक में दी कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल ठीक आइन और कानून के मुताबिक ये प्रॉपर्टी खरीदी है। आप मेरा हिसाब लगा ले, मैं एक आम आदमी, शरीफ आदमी, मैं इनके साथ लड़ नहीं सकता था, तो मैंने कानूनी जंग का सहारा लिया। मेरे जालिमों ने 20 साल ये तबाह कर दिए। क्या मेरे साथ ये होगा? मेरा आपने साथ दिया है। ये 400-500 बंदा नहीं है, ये हजारों लाखों की तादाद में मेरी वीडियो देखी जाएगी। तो आप लोग जब शेयर करेंगे तो लोग मेरी बात सुनेंगे। मेरे साथ जिस जगह पे नाइंसाफी हो रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं इंसाफ लूंगा इन लोगों से। मेरे साथ जो जुल्म और नाइंसाफी का निजाम ये हुआ है, मेरे साथ मेरा जो बच्चों का मुस्तकबल इन लोगों ने दाव पे लगाया है, जो मेरा ये असर हुआ है इस सिस्टम में, ये मैंने तो आंखें खोली हैं आपकी। मैंने तो आम आदमी को बताया है। सिटीजन पोर्टल पे मेरी 14 कंप्लेनें हैं। एक कंप्लेन में मुझे ज़हनी मरीज डिक्लेयर किया है, दूसरी कंप्लेन ने मुझे सिटीजन पोर्टल पे ब्लैक मेलर डिक्लेयर किया है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने। तो भाई सिटीजन पोर्टल मेरे लिए तो नहीं है, मेरी तो गुजरात का भाई केस है। गुजरात पाकिस्तान में नहीं है, ये कोई इंडिया की रियासत है जिधर मैं रजिस्ट्री लेके पकड़ के बैठा हुआ हूं। मेरे साथ इन्होंने मेरा तमाशा इन्होंने बनाया, मेरे साथ इन्होंने बड़ी नाइंसाफी की है। आप लोग मेरा साथ ना देते, अगर ये मेरा प्लाट भी हड़प कर जाते, मुझे ब्लैक मेलर ज़हनी मरीज डिक्लेयर करने में कामयाब हो जाते, जो मैं इनकी मैंने कार्रवाइयां कामयाब नहीं होने दी। अपने हक के लिए मैंने जंग लड़ी है, फाइट की है। एक आम आदमी ने उठ के इन ताकतवरों के सामने अपना केस लड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करमो फजल से मैं हर फोरम पे इनसे जीता हूं। कुरान पे फैसला किया है, ये लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट जाके DPO के खिलाफ रिट कर दिया। जब आप इन्वेस्टिगेशन चेक करें, गुजरात के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देखें उधर क्या इन्वेस्टिगेशनें आई। उसके बाद DPO मुझे कब्जा लेके दे रहा था। ये क्यों हाईकोर्ट में गया कुरान का ये कह के हमें कुरान पे फैसला मंजूर है। 2 दिन बाद कुरान पे फैसला था, तकरीबन 200-250 बंदा मैंने इकट्ठा किया, 50-60 बंदे, ये पुलिस के उधर सारे मौजूद थे, DPO मौजूद थे, SP साहब मौजूद थे। ये जिन लोगों ने कब्जा किया 2 बंदे, ये उस वक्त हाईकोर्ट में जाके रिट तैयार करा रहे थे। इन्होंने जाके हाईकोर्ट में DPO के खिलाफ रिट कर दी कि DPO कब्जा लेके दे रहे हैं। और भाई इसको ये टेक्निकली तरीके से ये मारते हैं बंदूक को। मैं आम आदमी लड़ सकता हूं, इनके तो हजारों की तादाद में जाके देखें आप गुजरात में। ये परवेज राय साहब के बंदूक है, मेरे केले का जमीन पे कब्जा नहीं किया, और भी बड़े रो रहे हैं इनकी जान को। ये टेक्निकली तरीके से मारते हैं बंदूक को, ये अदालतों में ले जाते हैं और फिर तरीहें डालते हैं, फिर दरज्जों पे प्रेशर डालते हैं, फिर सिफारिशें कराते हैं, फिर अपना असर सूद दिखाते हैं, फिर हर जगह पे अपना कोशिश करते हैं कि जनाब किसी तरीके से बात दबाई जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मदद की है। ये मेरे मासूम बच्चों का हक है जो मैंने बाहर मजदूरी करके कमाया। मैंने गवर्नमेंट को पाकिस्तान में पैसा लेके आया, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम किया। मैंने टैक्स दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। जिस गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दिया, वो गवर्नमेंट जब मेरी जमीन कमर्शियल हो गई है तो 13 मरले पे वो काबज है, 39 मरले पे वो बंदे बैठे हुए हैं जिनके पास आज तक कोई डॉक्यूमेंट साबित नहीं हुआ। सिर्फ इनको पता है कि अगर स्टे आ जाएगा अदालत में तो हमारे मुल्क का अदालती निजाम इतना घटिया है, इतना घटिया है, इतना घटिया है कि आप सच को सच साबित करने में आपको 20-21 साल लगेंगे। ये कोई मुल्क है, ये तो तमाशा देखने वाला हजूम है। और बिल्कुल इनको जब बात करेंगे तो ये उठ जाएंगे। ताहिर अल-कादरी साहब की मैं बार बार ये बात सुन रहा हूं, या उनकी जमात की मैं बात सुन रहा हूं, वो कहते हैं इनकलाब आएगा, इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए। और भाई इनकलाब आता है कौमों में, हजूम में इनकलाब नहीं आता। कौमें उठती है इनकलाब के लिए, ये ना उठेंगे ना ये कौम उठेगी। ये इसी तरह ही मारेंगे, गरीब आदमी को ताकतवर मारेगा, दूसरे बैठ के तमाशा देखेंगे, और तमाशा देखने के बाद घरों में बैठ के फैसले करेंगे केस के। मेरे केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा मेरे केस का नोटिस दिया है, इमरान खान का नोटिस मौजूद है, लेकिन मेरा फैसला नहीं हो रहा। मैं वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की खुली कचहरियों में मॉडल टाउन में मैं जलील होता रहा, चीफ सेक्रेटरियों के दफ्तरों में, IG के दफ्तरों में, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन कंप्लेन नंबर 465, मेरा थाने में पर्चा दर्ज है, मुकदमा नंबर 213/13। जो इसका शर किया इन लोगों ने, अल्लाह पाक इनको कभी माफ नहीं करेगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम दोस्तों भाइयों को खुश आमदीद जो कमेंट्स कर रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपने मेरे केस को आपने बचाया, इधर मैं नहीं बचा सकता था, मेरी क्या ताकत है। आपने मेरे केस को अपना केस समझा है,
मेरे दोस्त जितने भी अहबाब मेरे साथ शामिल हैं, तकरीबन मेरा 29-30 हजार फॉलोवर है, 5000 मेरा फ्रेंड है, सारे मेरी हेल्प के लिए खड़े हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी और कोई सपोर्ट ना आप करें। मेरे पास बिल्कुल वसाइल नहीं है, लेकिन मैं जब कोशिश करता हूं कि मेरी माली सपोर्ट करें तो लोग पीछे हो जाते हैं। मैं माली सपोर्ट की कोई आपसे अपील नहीं करता। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि हम ये डीपीओ साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। डीपीओ साहब को इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि डीपीओ साहब इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे, इनको पकड़ेंगे भी, मेरी जमीन का कब्जा भी मुझे वागुजार करा के और चेक करवाएंगे कि मैं अदालतों से कब्जे का केस ये मल्ली साहब और दराजी साहब से हारा हूं कि जीता हूं। ये हारने के बाद भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम जीते हैं, जबकि अदालती फैसले मौजूद है। तो भाई ये मुल्क ऐसा है कि अदालतें जो फैसले कर रही हैं, जो कब्जा करने वाला है वो उसको भी नहीं मान रहा। भाई ये नजायज कब्जा करने वालों का मुल्क है, ये ताकतवर जो कब्जा करते हैं। मैं मशवरा देता हूं ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल मुफ्त में, भाई कब्जा करता है उसको सर रजिस्ट्री दे के तो बाकी अपना सब कुछ बचा लो, नहीं तो आपको बाकी आपका अदालतें लूट लेंगी, ये अदारे लूट लेंगे आपको। तो भाई अपना आप भी बचाएंगे, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, ताकि अल्लाह पाक हमें माफ कर दे क़यामत वाले दिन। और हम कलमा गो लोग हैं, हम तो हर बंदे की हमें हैर करनी चाहिए। बेशक को गैर मुस्लिम परेशान है तो हमको तो उसका भी साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा सलाम ये कहता है कि मदद करो मजलूम की, बेशक मुसलमान है या नहीं है। तो मैं तो आपका कलमा गो भाई हूं, आपको तो कम से कम मेरी एक दो ग्रुपों में हमदर्दी के नाते, इंसानी हमदर्दी के नाते, आप छोड़े पाकिस्तानी मुसलमान सब कुछ, इंसानी हमदर्दी के नाते आपको मेरी वीडियो शेयर करनी चाहिए और इस इमरान खान से मुताबा करना चाहिए कि जनाब नासिर अवान को इंसाफ दिया जाए। अगर नासिर अवान किसी जगह पे गलत साबित हो जाता है, इसको फांसी की सजा दी जाए। मेरा बहुत बड़ा केस है, अल्लाह पाक से आपको खुश रखे इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत करीब पहुंच गया हूं, मैं 99% इनसे जीत चुका हूं हर जगह से। 1% मेरी जलालत बकाया है, वो देखें कितनी देर चलती है। मैं तो बिल्कुल खत्म करके केस बैठा हुआ हूं। हर महीने मेरा दिल करता है कि अगले महीने मेरा फैसला हो जाएगा, इस बंदे ने नोटिस लिया है, इसने नोटिस लिया है। आरपीओ साहब चेंज होकर दूसरे आ गए हैं। पहले आरपीओ साहब के पास मैं गया हूं, मैंने एप्लीकेशन दी है कि सब इंस्पेक्टर का मेरी जमीन के साथ क्या तल्लक है। वो डीसी के गनमैन ने मुझे मारा, मेरा मोबाइल छीना, मेरा मोबाइल बरामद कराया जाए, उसकी आईडी ब्लॉक की, इससे पूछा जाए कि क्यों ब्लॉक की है उसकी आईडी। दूसरा, ये जो बंदे कब्जा करने वाले हैं इनसे पूछे कि इनके पास डॉक्यूमेंट क्या है। 3 सवाल मैं लेके आरपीओ रियाज नजीर गाला साहब के पास गया, उन्होंने गुजरात से रिपोर्ट मंगवाई। गुजरात डीपीओ ने बगैर मुझे सुने, बगैर मुझे बुलाए, मुझे देनी मरीज डिक्लेयर करके मेरी रिपोर्ट वापस भेज दी। मैं जब दोबारा आरपीओ साहब से जाके मिला तो आरपीओ साहब को मैंने कहा कि जनाब मैंने आपसे 3 सवाल किए हैं, तो सब इंस्पेक्टर का मेरी जमीन के साथ क्या ताल्लुक है। वो पुलिस वाले ने मुझे क्यों मारा, मेरा मोबाइल छीना, और उसके बाद आप मुझे पुलिस है, मैं तो इनसे नहीं पूछ सकता, आप मेरी मदद करें इनसे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ताकतवर हैं, बहुत ज्यादा है, अपने आप को ताकतवर समझते हैं। ये तो खुदा से नहीं भाई डरते। तो ये सिस्टम बहुत छोटा है सिस्टम है इनके सामने, ये सिस्टम बस पैसे पे चल रहा है, पैसे पे। इमरान खान साहब, मैं आपसे जरूर सवाल करना चाहूंगा, आपने कितने दबंग दादे किए, लोगों के साथ दावे किए आपने कि इंसाफ कराएंगे, गरीब को इंसाफ देंगे, ताकतवर अच्छा वकील करता है, करोड़ों का करता है, सिफारिशें कराता है। जब आपको सारी चीजों का मेरे भाई पता था तो आप क्या कर रहे हैं, आपके इदारे क्या कर रहे हैं, आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है। फौज पाकिस्तान बकौल पूरी कौम के आपके साथ है, तो भाई इधर फौजी अदालतें लगाओ ना। जो केस नजायज लोगों के जलील किया जा रहा है उनको तो फौजी अदालतों में चलाएं, और ओवरसीज पाकिस्तानी मुतालबा करें कि जो केस कब्जे का होगा जो फौजी अदालत में चलेगा, और दूसरा गवर्नमेंट हमें पैसा हमारा वापस करे जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। यहां तो भाई कोई भी आकर उठ के बैठ जाएगा आपकी जमीन पे, घर में, जायदाद में, तो उसको पूछेगा भी कोई नहीं बंदा। पुलिस आपकी बिल्कुल इसमें मदद नहीं करेगी कि इनसे डॉक्यूमेंट चेक करें। वो कहेंगे जी कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर आपका कब्र तक चलता रहेगा। मेरा ये 100 साल वाला केस था, 100 साल वाला, तो 20 साल में मैं तो धरने दिए, मैंने टैंकियों में मैं चढ़ा, एहतजाज मैंने किए, हर जगह पे मैंने अपना हक के लिए आवाज बुलंद की, और बड़ी मुश्किलों तक मैं इधर तक पहुंचा हूं। तो मेरे लिए आपने जरूर आवाज उठानी है, मेरी आपने मदद करनी है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आपने जरूर मेरा साथ देना है, क्योंकि एक गरीब आदमी का ये माल खा रहे थे, मैंने इनको एक्सपोज किया सारी दुनिया के सामने कि ये नजायज कर रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला परवेज राय साहब, ये अभी डीपीओ साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप वो रिपोर्ट आती है तो चेक करें कि ये जो बंदा स्टाम्प करके मल्ली साहब और दराजी साहब को देने वाला है
وہ خود مالک نہیں ثابت ہوا تو یہ آگے سے کدھر کیس لڑ رہے ہیں میرے ساتھ نجائز میں ان سے کیس لڑا ہوں. میرا لاکھ روپے گجرات میں مجھے سارا گجرات جانتا ہے. سرگودا روڈ پہ میری مناج گلاس اسٹور کے نام سے دکان تھی. ایک میرے پاس شاہزور گاڑی تھی, ایک میرے پاس میران گاڑی تھی. میرے پاس دو راستے سے میرے قوم کے ممار بندوں, یا میں وہ زندگی گزارتا کہ میرا ڈرائیور جو کما رہا تھا وہ مجھے آ رہا تھا, گاڑی میرے پاس تھی, میں میرا سسٹم چل رہا تھا. میری گلاس اسٹور تھا میرا, شیشے کا کاروبار سرگودا روڈ پہ. اس کے بعد میرے پاس کار تھی. میری زندگی لائف میرا بہترین گزر رہی تھی. میرے پاس دو راستے تھے قبضے کے بعد, یا قبضہ چھڑاتا ان طاقتوروں سے تو یا اپنی وہ زندگی گزارتا جو میں گزار رہا تھا. لیکن میں نے کہا کہ میں نے جو پردیس 25 سال میرے والد صاحب رہے ہیں, 15 سال میں, تو ہم کو یہ ملی صاحب اور دراجی صاحب کے لیے تو نہیں جا کے مزدوری کر رہے تھے. روڈ کے برش درجہ چارم کی بھی ہم نے ڈیوٹی کی ہے. تو ہم ان کے لیے گئے تھے کہ یہ بغیر ڈاکومنٹ کے آئیں گے تو ان کو جا کے بولیں گے جی بھائی لے جو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. میری 4 دیواری گیٹ پورا علاقہ اس کو جانتا ہے کہ میری اس زمین کے اوپر میرا قبضہ رہا ہے. بھائی اٹھنا چاہیے نا, اگر آپ اٹھیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, آپ کی بات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, جدھر بھی ظلم دیکھتے ہیں کھڑے ہو جائیں, کچھ بھی نہیں کریں گے. ماریں گے مجھے تو ماریں گے تو میں تو شہادت کے زمرے میں میرا کیس آئے گا. میں اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہوں اور حق پہ لڑ رہا ہوں, کسی جگہ پہ میں غلط نہیں ہوں. مجھے انہوں نے غلط ثابت کرنے کے لیے ہر اربا استعمال کیا, اور 16 17 18 19 گریڈ کے اٹھ کے افسر مجھے لکھ رہے ہیں کہ میں بلیک میلنگ کر رہا ہوں, میں ذہنی مریض ہوں, میں ڈرامے باز ہوں, میں درخواست باز ہوں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اللہ پاک ان کو غارق کرے. اتنی سیٹوں پہ بیٹھ کے ان لوگوں نے میرے بارے میں جو لکھا, ایک عام آدمی, ایک یتیم آدمی کا. میں نے اپنے حق کے لیے بہت بڑی تاریخ, آپ کو یہ تاریخ میں ملے گا نہیں کہ کسی بندے نے اتنی اسٹرگل کی ہو. واحد پاکستانی میں ہوں جو اپنے حق کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے. یہاں تو غیر لوگ ہیں اپنا حق نہیں مانگ سکتے. تو بھائی میں نے جو ایک کرپٹ ترین سسٹم میں اپنے آواز حق بلند کیا ہے تو میں کامیاب ہوں آپ کے سامنے. کسی جگہ پہ میں غلط نہیں ہوں. میری رجسٹری اور انتقال کو 31 سال میں صرف یہ ملی صاحب اور دراجی صاحب نے چیلنج کیا. عدالتوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. بعد میں پیلوں میں گئے ہیں, عدالتوں نے کہا ہے پیلیں بھی خارج کی ہیں ان کی. یہ الٹا جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جناب ناصر کیس ہار گیا اور ہم جیت گئے ہیں. یہ ہے پاکستان کا جو قبضہ مافیا جس کو کہتے ہیں. اب فورم بیٹھے گا, اب پہلے تو چیک ڈی پی او صاحب کریں گے کہ ان کا میری زمین کے ساتھ کیا لینا دینا ثابت ہوا ہے, یا ڈاکومنٹ ہے ان کے پاس کہ یہ اس بیاہ پہ بیٹھے. ابھی کوئی آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں یہ آئین میں لکھا گیا ہو کہ جناب یہ پرویز الہی صاحب کی پارٹی کے ہیں تو ان کو بھائی کاغذ نہیں پوچھے جائیں گے اس پاکستان میں. اللہ پاک میری مدد کر رہا ہے. میں 100% حق پہ ہوں. میں 99% بھی ہوتا تو میں شاید 1% پہ کوشش کرتا کہ میں نہ کھڑا ہوں, کہ مجھے 1% پہ بھی یہ مار سکیں کہ میرے ساتھ ظلم کریں گے یہ لوگ. میں 100% حق پہ تھا. میں نے اپنا حق ساری دنیا کے سامنے تسلیم کرایا ہے. میں نے ہر جگہ پہ ان کا غلط جھوٹ ایکسپوز کیا ہے ان لوگوں کا. یہ نجائز قابض ہے. نجائز قابض کی جو سزا ہے انشاءاللہ تعالی میں ان کو دہلاؤں گا. یہ کنورٹ ہو چکا ہے, یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں, یہ اداروں نے بھی کیا کہ یہ لوگ نجائز قابض ہیں. اتنی کوشش کے باوجود, اتنے تماشوں کے باوجود اگر مجھے انصاف نہیں نہ مل رہا تو جو لوگ عام طریقے بھگت رہے ہیں جا رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں کہ ان کو انصاف مل جائے گا؟ ان کو جا کے دلیل پہ انصاف دیں گے؟ آپ میرے ساتھ ہیں سارے بھائی, اور جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا آپ نے اسی طرح ایکا کر کے میرے ساتھ جب میں لائیو آتا ہوں سارے میرے بھائی مجھے سی فرسٹ پہ رکھیں, اور جس ٹائم میں لائیو آؤں میرے ساتھ آپ جڑ جائیں. بے شک آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو موبائل تو آن کر دیں, لوگوں کو پتا لگے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کو کوئی شرم آئے جو میرا کیس دیکھ رہے ہیں, کہ کم سے کم ان کو پتا تو چلے کہ کس قدر یہ ظلم کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, ان کے ذہن جو ہے ہراک نہیں اچھی, ذہن پریشان ہو گئے ہیں بچے میرے ساتھ لڑ لڑ کے. یہ کیسا ملک ہے؟ بند کریں یہ دکانیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں اگر عدالتیں بند کر دی جائیں مسائل بہت زیادہ حل ہو جائیں گے. یہ ادارے کر دیں گے. یہ عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, سپریم کورٹ ایک آرڈر کر رہی ہے, وہ آرڈر نیچے ڈی سی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں تو انہیں عدالت کر دو کہ ایک نئے کیس میں پھنس جاؤں. پہلے میرے نجائز طور پہ چل رہے ہیں 4-5 کیس, ایسے ہی مجھے الجھا دیا گیا ہے. کبھی رول 7-11 لے آتے ہیں, کبھی رول 8-9 لے آتے ہیں. اے ملک کا یہ آئین اللہ پاک ان کا بیڑا گرک کرے جنہوں نے یہ آئین بنایا جس میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. میں نے تو بھائی آپ کے سب
इनका सब गंद जो गवर्नमेंट का ये आइन जो कानून बना है हमारे, मैंने तो सारा आपके सामने रख दिया है। फैसला आप घरों में कर लें कि मुझे अब केस को छोड़ देना चाहिए। ये चंद दिन ये डीपीओ साहब की इंक्वायरी के बाद मैं क्या करूंगा? मेरे पास वसैल ही नहीं है। मेरा तो लाखों रुपया किरायों पे बर्बाद हो गया कि कभी किधर जाऊं, कभी लाहौर जाऊं, कभी इस्लामाबाद जाऊं, कभी गुजरात जाऊं, कभी गुजरांवाला जाऊं। अपनी जमीन के लिए, मेरी जाती मलकियत वो जमीन है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, इसलिए कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था और मैंने अदारों और अदालतों का सहारा लिया। जो इन अदारों ने अदालतों ने मेरा तमाशा बनाया, इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। ओवरसीज पाकिस्तानी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गए हैं, कबूतर की तरह। भाई कल इस पाकिस्तान में आपने आना है और कुछ नहीं तो दफन इधर ही होना है। इन्होंने कब्रों में कब्जे करने हैं, इन लोगों ने जो कर रहे हैं, जिनको पूछ कोई नहीं रहा। ये कब्रों में भी आके बैठेंगे तो कहेंगे ये कब्र वाली जमीन जो है मेरी है। एक बंदे का कब्जा हुआ पिछले दिनों, वो मेरे साथ मिला है तो मुझे कहता है कि मैंने एक जमीन खरीदी है, मेरे पास उसकी रजिस्ट्री थी, मेरे पास उसका इंतकाल था, मेरे पास सब कुछ था उसका। तो मैं उस जमीन के ऊपर बैठा हुआ था तो एक बंदा आया, उसने मेरी जमीन पर कब्जा किया और वो मुझे कह रहा है कि मेरे वालिद की कब्र है इस जगह के ऊपर, ठीक है। और उस बात पे अदालत ने स्टे दे दिया तो वो कह रहा है कि मैं 12-13 साल से जलीलो ख्वार हो रहा हूं। आप हिसाब लगा ले इस मुल्क का निजाम क्या चल रहा है। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है भाई, कोई अच्छी पार्टी ज्वाइन करो, कोई गुंडागर्दी है नासर ये ऐसे हैं वो काम करो। पाकिस्तान आपका है, अदारे आपके हैं, अदालतें आपकी है, लेकिन इंसाफ नहीं है। इतना बड़ा मेरा हाईलाइट केस है तो मेरे साथ इंसाफ नहीं गवर्नमेंट कर सकती। मुझे पकड़े ना, मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे बोले कि मैं जो बातें कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, मेरा केस चेक करें। आज ये हार के इतनी मुश्किलों से मैं इनसे जीता हूं केस, तो ये जीत रहे, हारने के बाद भी कह रहे हैं ये डबल गेम खेल रहे थे कि इधर से हारेंगे तो उस साइड पे आ जाएंगे, उस साइड से हारेंगे तो इस साइड पे आ जाएंगे। दुनिया का लास्ट नंबर पे आता है जो दुनिया, मुझे पता नहीं पूरा एग्जैक्ट कितने मुल्क हैं, पर ये आखिरी मुल्क होगा जिसमें इतना घटिया निजाम किसी मुल्क में भी नहीं। सबसे ज्यादा गंदा इस मुल्क में निजाम है। ये सबसे थर्ड क्लास सिस्टम चल रहा है इस मुल्क में। जो चलाने वाले बैठे हुए हैं अपनी तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं, मुराद पूरी ले रहे हैं और सिर्फ ये कहने के लिए बैठे हैं कि आपका कोर्ट मैटर है। और भाई कोर्ट मैटर का तयन कौन करेगा? कोई अदारा बनाओ ना, फौज का अदारा बनाओ जो सिर्फ फैसले चेक करे, जजमेंटें क्या आई हैं, अदालत से कोई क्या मांग रहा है, अदालत उसे क्या दे रही है। और भाई इधर टेक्निकल सिस्टम चल रहा है, इधर कोई ये अंग्रेज का कानून चल रहा है। अगर अंग्रेज भी इधर होता है इस मुल्क में, ये जुल्म ना करता जो इस मुल्क में हो रहा है। सारे लोग देख रहे हैं मुझे, मैं सारी दुनिया के सामने सच्चाई बयान कर रहा हूं कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर जो गलत है। बेशक अगर मैं भी गलत हूं तो मुझे भी या अल्लाह तबाह बर्बाद कर। वो कम से कम यार उठो तो सही। मरना तो सबने है, किसी ने इधर को 100 साल वाला अगर है तो सेल्फी बनाए उसके साथ, मुझे भेजें इधर उसकी फोटो भेजें सेल्फी कि ये 100 साल बच गए। मरना इन लोगों ने भी है लेकिन ये अपने तरीके से मरेंगे, मैंने भी मरना है, मेरा भी अपना तरीका होगा। ये कोई मुल्क सिस्टम चल रहा है, लेगा कोई इंसाफ, जाएगा कोई अदालतों दारों में? यहां तो सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, लोगों को फंसाया हुआ है। वही मैंने बंदे देखे अपने साथ, वो भी लड़ रहे हैं। 20 साल पहले जवान थे, आज वो बूढ़े हैं, लेकिन मुझे उसी अदालतों में दारों में नजर आ रहे हैं जिधर मैं धक्के खा रहा हूं। होगा इंसाफ? मैं तो इतनी स्ट्रगल की है, मैंने तो एहतजाज की है। मैं तो 3 दफा चढ़ा हूं टैंकी पे गुजरात फारा चौक 2015 में। उस वक्त मैं चढ़ा जिस वक्त जानबूझ के ये पटवारी को मार रहे थे और 3.25 साल बाद डीजी तक मैं अपना केस लेके गया और आईजी ने मुदाखलत की तो पटवारी जिंदा हुआ जिसे मैं एंटी करप्शन मार रहा था। पता नहीं कितना पैसा खाया, ये लाल पैसा है, ये राम इनके गया है पेटू में, इनकी औलादों ने भी ये खाया है जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है। क़यामत वाले दिन और दुनिया में भी इंशाल्लाह ताला साहब देंगे, किसी न किसी शक्ल में देंगे। कोई इसके ऐसा नुकसान होंगे, इनका इधर दुनिया में भी निकलेगा और आखिरत में भी ये रसवा होंगे, दुनिया के सामने रसवा होंगे ये लोग। इनको माफी नहीं मिलेगी और मैं इनको क़यामत वाले दिन भी माफ नहीं करूंगा, इन्होंने जितना मेरे साथ जुल्म किया है। और इंशाल्लाह ताला कब्जा ये लेके देंगे जो डीपीओ साहब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है,
ये चौधरी परवेज लाई साहब के बंधु के पास, तो केस कैसा भाई? तो फिर लड़ाई कैसी भाई? बगैर डॉक्यूमेंट के लड़ू इनके साथ केस? ये डीपीओ साहब फैसला करेंगे, ये डीसी गुजरात फैसला करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब फैसला करेंगे कि ये आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां मुझे लाखों बंदे देखते हैं, कोई जवान ये जुर्रत करके नहीं कह रहा कि हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में 200 बंदा पेश होते हैं कि भाई जो फैसला हुआ है कब्जे का जमीन का, जो इन्होंने रजिस्ट्री इंतकाल को चैलेंज किया हुआ था, वो क्या फैसला हुआ है, किसके हक में आया है, किसके खिलाफ आया है, देखे तो सही। इस तरह करेंगे गरीब आदमी के साथ तो कौन जाएगा भाई? अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मांगेगा इंसाफ? मैंने तो एक ऐसी जंग लड़ी है जो तारीख मुझे याद रखेगी 100 साल तक कि मैंने इनके सामने अपना केस लड़ा, इनको हराया, और हर जगह पे कुरान से ये भाग के गए। परिया पंचायत ने जो फैसला किया, 6 एमपीए बैठे, डीसीओ, डीपीओ, एसी बैठा, मुश्तरका तौर पे निजायज किस्म का फैसला किया। मेरी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी जो जयपुर परवेज साहब के बंधु के नीचे है, इनका मेरा 15 करोड़ किया। इन्होंने कहा कि 1 करोड़ 36 लाख ले लो। मैंने आमीन इसलिए किया, मुझे पता था कि मेरे साथ इस गुजरात में नहीं खड़ा होगा कोई बंदा। आज भी गुजरात की आवाम है। मैं अपना केस लेके मंडी बावलदीन चला गया हूं कि यहां कोई कुछ के नहीं रहा, यहां को बोल नहीं रहा, यहां को साफी अपना किरदार नहीं अदा कर रहा। उठे ना जाके पूछे वो आरफ लाले मूसे वाले से, तमाम साफी जो है, जो पूरा मेरे हिसाब से तो पाक गुजरात में आज आबादी है, अगर फर्ज किया 1 करोड़ तो 50 लाख साफी है गुजरात में। और भाई पूछो ना जाके आरफ लाले मूसे वाले से, पूछो ना उस पुलिस वाले से, डीपीओ से साहब से पहले आप लोग इनका बयान लें। उसको पूछे कि मेरी जमीन के साथ उसका क्या ताल्लुक है, किधर से खरीदी है, क्या डॉक्यूमेंट है, मल्ली साहब को और दराजी साहब को बेची है तो उनको बयान किधर दिए हैं। तो ये मेरी मदद करें इसमें। आप लोग सहाफत कर रहे हैं, सहाफत का मतलब है मजलूम की आवाज उठाएं, जुल्म के खिलाफ उठें। मैं आप लोगों से सबसे ये करता हूं कि आप बराए मेहरबानी, जी बिल्कुल फरह बड़ाई साहब, बिल्कुल ये राव जफर ने ये सारा काम किया है। अब दोबारा 20 साल के बाद वही राव जफर उसी हल्के में लगा है और उसने मेरा फर्ज जानबूझ के रोका है। अब ये पटवारी जो है, इसका नाम है राव जफर। आप इसका हिसाब लगा लें कि ये अंजमने ये अंजमने पटवारियां, ये जो पटवारी हैं उनका ये सदर है रीजन का। अब जब इसको पकड़ेंगे तो जितने पटवारी होंगे वो आ जाएंगे, जनाब हमारे सदर को छोड़ें, वो हड़तालें करेंगे, फिर उठेंगे। वो जो हाफिज को पकड़ेंगे तो फिर जमातों वाले आ जाएंगे, जो इस्लामी जो दीन और सलाम वाले हैं कि हाफिज कुरान को आपने पकड़ लिया। इधर भाई बहुत बड़ा मुश्किल काम है, कब्जे का खास करके केस ना लड़ें, बाकी तो चल रहा है मामला, कब्जा छोड़ दें भाई। अगर कोई कब्जा आके करता है, जी मेरा गुजरात शहर का केस है, मेरा गुजरात शहर फ्रूट मंडी के सामने मेरा प्लाट है, ये 14 साल मेरे कब्जे में रहा है। आप आदोवाल का एक बच्चे को मेरे केस का पता है, जिस गांव का ये रकबा है। मेरे साथ फैक्ट्री वाले हैं, हवेली वाले हैं, शोरूम वाले हैं, साथ मेरे चौधरी साहब हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। आप इनसे जाकर इन्वेस्टिगेशन तो करें गुजरात मीडिया कि भाई किसका कब्जा। आरफ का भी कभी किसी ने देखा है उधर? ये आरफ ने ये किसी पता नहीं बंदे से बयान लिए और बयान लेके या लिए हैं जी पुलिस वाले ने, ये पता नहीं जैली किस्म के बंदे शामिल करके तो मेरी जमीन पर कब्जा करा दिया है। मैंने इनको कहा कि जनाब जिधर से इनको जमीन बेची है उधर से कब्जा दीजिए, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे क्या कह रहा है महकमा? मुझे कह रहा है कि भाई ये आपकी वो जमीन नहीं है, ये सड़क जो चल रही है ये आपकी मलकियत है, आपने हिसाब लगाना है, आपने देखना है। तो मेरे लिए आप सब ने दुआ करनी है। मैं एक गरीब और यतीम आदमी हूं, बार बार मैं ये कह रहा हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जिसके लिए मैंने ये जंग लड़ी, और मैंने एक मसाली जंग लड़ी है। मैंने अपना पार्लिमानी तरीके से मैंने सारी गुफ्तगू की है, कोई मैंने इनको गालियां किसी को नहीं निकाली। पार्लिमानी तरीके से मैं चल रहा हूं क्योंकि ताकि लोग नफरत ना करना। हालांकि मेरा बनता है इनको ये है कि चौकों में खड़े होकर मैं इनको गालियां करूं, निकालूं, ताकि दुनिया देखे इधर। मैं तो वैसे ही ज़हनी मरीज हूं, मुझे तो डीपीओ साहब की सनद मेरे पास मौजूद है। अगर मैं किसी को बोलता भी हूं तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे कोई सजा दे इस मुल्क में, क्योंकि मुझे साबित किया इन लोगों ने मैं ज़हनी मरीज हूं। अब ये हाईकोर्ट में करेंगे ना साबित, जब मैं इनको बोलूंगा कि मुझे बताएंगे किधर मैं ज़हनी मरीज हूं। मैं तो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा हूं, आप लोग मेरी आवाज बंद करने के लिए अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। आप लोगों ने मेरे भाई साथ देना है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि जो जो मेरा केस देख रहा है जरूर मेरे लिए आवाज उठाएं
और अल्लाह पाक के कर्म फजल से जो मेरे लिए आवाज उठाएगा, दुनिया में भी आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होगा कि उन्होंने मजलूम का साथ दिया, हक के लिए आवाज उठाई है। तो बहुत ज्यादा बड़ी जंग है। मैं इंशाअल्लाह ताला वक्तन फवक्तन जो जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं आप देखते जाएं। वो हाफिज ने बयान नहीं जुम्मे वाले दिन दिया, डीपीओ साहब उधर बैठे हुए थे, वो बगैर बयान दिए निकल गया, क्योंकि उसको पता नहीं कि अब क्या होगा उसके साथ। हाई को जिधर जिधर बयान दिए पहले बयान सबके मौजूद है, इसने सबको कहा है कि नासिर के अलावा किसी बंदे का उस जमीन के ऊपर कब्जा नहीं। ये जो हाफिज मास्टर माइंड है मेरे केस का, ये कह रहा है कि नासिर के अलावा उसी उधर किसी का पहले ना कब्जा था ना बाद में था। और 14 मरले के बयान ये हाफिज के भतीजा है को फैज रसूल नाम का। और यार फैज रसूल साहब, और आप किधर है फैज रसूल साहब? आप बताएं, आपके चाचा जान ने जो मेरे साथ ये जुल्म किया है दुनिया को बताएं तो सही फैज रसूल साहब। ये आपका खारिया के साथ इनका गांव है, कोई लोंगो पिंड है इनका, तहसील खारिया। और भाई फैज रसूल आपका उधर कब्जा था तो पूरी दुनिया को आके बताओ। ये आपका हाफिज कुरान जो चाचा ये ताया, मुझे नहीं पता ये आपका क्या रिश्ता लगता है, दुनिया को बताएं इसके बारे में। अगर ये जुल्म करेगा तो क्यामत वाले दिन आप भी जिम्मेदार हैं। 14 मरले के आपके बयान है मेरे केस में। किधर से आपकी जमीन आई, किधर आपका कब्जा था? कोई दुनिया में 22 करोड़ में कोई बंदा ऐसा है जो कहे कि फैज रसूल का इस जमीन पे कब्जा था? तो अगर है तो बताओ मुझे। इन्होंने जानबूझ के एक 3-4 बंदे इकट्ठे किए और एक मुझे फंसा दिया, मेरी जमीन पर कब्जा करा दिया। उन्होंने बयान दिए, किसी बंदे ने उसकी जमीन थी नहीं थी मुझे उनका पता नहीं, और इन्होंने बयान दिए। आज तक ये मल्ली और दराजी साहब के, ये परवेज लाई साहब के जो बंदे हैं, इनको पूछे जाके इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो किस चीज का मेरे साथ ये केस ला रहे हैं, मुझे गलत साबित कर रहे हैं। साफियों को कह रहे हैं जनाब ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। मैं तमाम साफियों से कहूंगा खुदा के लिए उठे, अपना कलम का जो किरदार है ना असल कलम का वो अदा करें मेरे केस पे, ताकि पता चले लोगों को। साफियों बड़े साफी हैं गुजरात में, मुझे नहीं पता कि कितने हजारों के हिसाब से साफी हैं, हर बंदा ही आजकल साफी है। और मेरे भाइयों मेरा केस उठाओ ना, साफी जितने गुजरात के हैं साबित करो, इनके कहने पे ना करो। इनको तो मैंने साबित कर दिया कि नजायज कब्जा, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कब्जा इनके पास कैसे ट्रांसफर हुआ है? ये आरफ का आप बयान जाके ले लें उधर से इंचार्ज शिकायत सेल डीपीओ ऑफिस से, बयान दे के गया है, नीचे अंगूठा भी लगा के गया है और साइन भी करके गया है कि जनाब मैंने इनको बयान ही मल्ली और दराजी साहब को नहीं दिए। ओ भाई खुदा का खौफ करो, अगर बयान नहीं दिए तो मैं मल्ली साहब और दराजी साहब मेरे साथ किस चीज का केस लड़ रहे हैं, कभी स्टे ले आते हैं। सबसे बड़ा चैम्बर इनका है गुजरात में, ये दराजी साहब का, जिन्होंने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा किया। और भाई किधर लेके जाना है पैसा? इधर ही हर चीज छोड़नी है, इस इधर ही बस जो कवर के लिए जगह है वही बचत है इस मुल्क में। तो अच्छे करके जाओ किरदार, दुनिया याद करे। इस तरह जुल्म करोगे सारी दुनिया के सामने मेरा केस है और उसके बावजूद इनको ख्याल नहीं है, उसके बावजूद लड़ाइयां कर रहे हैं। भाई करो जितनी देर लड़ाइयां, मुझे अल्लाह पाक के कर्म फजल से पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे ये जमीन भी वापस लूंगा, आपके ऊपर हट जाने का दावा करूंगा। मेरा जो बच्चों का 3 साल का पीरियड जो बच्चों ने गुजारा है बगैर स्कूलों के, मैं आपके ऊपर डालूंगा सारी दुनिया के सामने, और आपको माफी नहीं मैं दूंगा क़यामत वाले दिन में इंशाअल्लाह ताला। कोई मसला नहीं है जी इंशाअल्लाह ताला जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सारे जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं मुझे, मेरा आप जरूर साथ दें। जिस वक्त मुझे जरूरत होगी मैं अपना बताऊंगा आपको कि मुझे अब मेरे पास कोई वसाइल नहीं रहा, मैं नहीं चल सकता, भाई मेरी मदद करो। लेकिन यह है कि मेरी वीडियो शेयर करके मेरी मदद करो। वजीर आजम से जाके खुदा के लिए उसको बोले कि यार इंसाफ के नाम पे वोट लिया, किधर गया तुम्हारा इंसाफ? कबीना जो बैठी हुई है किधर गई है भाई? तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। 11 बज गए हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा लाइव आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। बहुत शुक्रिया आपने कमेंट्स किए हैं। इंशाल्लाह ताला जितने भी मेरे बहन भाई बुजुर्ग देख रहे थे जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। खुदा के लिए आपने मेरा साथ देना है। थोड़ा टाइम रह गया, सिर्फ अब आखिरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं। फैसला पूरी मीडिया के सामने होगा, ये अंदर बैठ के फैसला नहीं होगा। पूरी गुजरात मीडिया देखेगी और ये परवेज लाई साहब के जितनी सियासत है ये भी देखेगी, और काफ लीग वाले भी देखेंगे कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। भाई तो किस चीज का इन्होंने केस लड़ा है? इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया नाम परवेज लाई साहब का, और इन्होंने कहा है कि क्योंकि हम परवेज लाई साहब के बंदे हैं तो हमें तो कोई पूछेगा नहीं डॉक्यूमेंट। खुदा का डर नहीं है इनको, परवेज लाई साहब को गुमराह किया इन लोगों ने।
मैं फैसले करा के बैठा हूं। मैं बेबुनियाद बात और झूठ पर पबली कभी बात नहीं करता। मेरी 4-4 घंटे की तकरीर आप सुन लें, एक जगह पे आप लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप उसी वक्त मेरे साथ सवाल करें। मेरा जेन्युइन केस है तो मेरा ये अशर हो रहा है, आम आदमी का क्या होगा। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, मैंने लड़ाई की इन लोगों के साथ, इनको सारी दुनिया के सामने एक्सपोज किया कि ये नजायज काबज है। इनके साथ पूरी गुजरात की इंतजामिया सीसा पलाई दीवार खड़ी हुई है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह पाक की जात है, मेरे बच्चे हैं और अल्लाह पाक किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। मेरा हक है, मैंने प्रदेश में दिन रात ओवर टाइम लगा के एक पैसा इकट्ठा करके अपने पाकिस्तान में अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दिया, मैंने गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए काम किया। मेरा क्या शक किया इन लोगों ने। तो कौन ही अल्लाह पाक बड़े बड़े काम लेता है छोटे छोटे बंदों से। मैं एक आम और गरीब था, नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला सफेद पोश बंदा था, मुझे इन्होंने इस तरीके से लजाया है। आज भी जाके मेरा केस देखें, कभी किधर जाके छोड़ देते हैं, कभी किधर छेड़ देते हैं। मैं तो हर जगह जा रहा हूं, हर जगह लड़ के थक गया हूं। एंटी करप्शन में जो मेरा अशर हुआ है, आप देखें मेरी तकरीरें जो मैं कर रहा हूं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि जितने भी मेरे बहन भाई बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, खुदा के लिए जितनी ज्यादा वीडियो होती है शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला मैं वक्तन फक्तन जो भी अपडेट होगी मैं करता रहूंगा। आप मेरे साथ लगेंगे तो ये मुझे मेरे साथ नाइंसाफी डंडी नहीं मार सकेंगे कोई। तो मेरा साथ दें, आप मेरा साथ देंगे तो गरीब आदमी का और निजाम ठीक होगा। गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। ताकतवर को इन अदालतों की जरूरत नहीं है। ताकतवर की भाई अपनी अदालत है, अपना कानून है उनका, उनको ये रहम कर। मैंने नहीं कभी देखा जिन्होंने कब्जा किया वो मेरी जमीन के आके तरीहें भुगत रहे हो। मैं एक दिन लेट हुआ हूं तो मेरा उन्होंने खारिज कर दिया कि तुम तरीह पे टाइम पे नहीं पहुंचे। भाई उलझा दिया गया है, कभी मेरा नीचे फर्द रोक दिया है। अब आपने देखना है कि गुजरात इंतजामिया के जितने मेरे भाई देख रहे हैं मुझे, ठीक है, जो जिला गुजरात के लोग हैं वो जरूर देखें मेरे केस को, कि इन्होंने मेरा जानबूझ के ये पटवारी ने फर्द दिया मुझे 3 फरवरी 2020 को 1 कनाल 19 मरले का, टोटल मेरी 2 कनाल 12 मरले 52 मरले मेरी प्रॉपर्टी है। फिर मेरा 3.5 मरले का फर्द दिया। नीचे से इसने थोड़ी सी गलती की, वो गलती से 7 महीना हो गए, तकरीबन 4 ये हो गए, तकरीबन 10 महीने गुजर गए हैं। वो मेरी रेट चल रही है कि मैं इनसे पूछ रहा हूं कि भाई मेरा क्यों ये फर्द रोका है आपने, किस आर्डर के तहत रोका है, किस अदालत के आर्डर के तहत रोका है। ये हर तरीके से परेशान कर रहे हैं और अब ये बचेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। मैं अगर मर भी जाऊंगा तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और मुल्क के इंजाम तक पहुंचेगा ये केस। ये सच्चाई पे केस है। कायर लोग हैं जो किसी की मदद नहीं करते, कर सकते हैं अगर वो उसके पास हथियार है उसकी मदद करने का तो उसको करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे। आप मेरे लिए दुआ करनी है। मैंने इंशाल्लाह ताला कंप्रोमाइज नहीं करना इन लोगों की। मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे कोई 1 अरब रुपया भी ये लोग दे तो मैं इनसे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं इनसे कब्जा लूंगा और उस कब्जे की जितनी सजा बनती है इंशाल्लाह ताला ये जेलों में भुगतेंगे। बेशक कितने ताकतवर है, खुदा से ताकतवर नहीं है ये लोग, ये सिस्टम से ताकतवर हो सकते हैं। अल्लाह की जात देख रही है, मेरे साथ अल्लाह की जात है। ये मेरे बच्चों का, मासूम बच्चों का हक, इन्होंने ये खाने की कोशिश की नकाम, लेकिन मैंने इनको खाने नहीं दिया। मैं जानता हूं अरबी जुबान मुझे फर पंजाबी की तरह आती है, उर्दू की तरह। 15 साल मैंने सऊदी अरब में गुजारे हैं। मैं जानता हूं अगर मैं जाके आज भी मजदूरी करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकता हूं। मैंने उधर एक स्ट्रगल की है, मैंने ये इधर आके लड़ा हूं कि मैं इनको अपना हक क्यों दूं। तो भाई मेरे लिए बड़ी ज्यादा परेशानी है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चौधरी इश्तियाक कंबो साहब बहुत शुक्रिया। आसम भट्टी साहब जी, क्या परेशानी है आपको है? तो आप मेहरबानी करके जितना मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकें जरूर करें। जो अपडेट आती है उसको देखें और मेरा साथ देने में मेरी मदद करें ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। और अल्लाह पाक जो मेरी मदद कर रहा है इंशाल्लाह ताला सारी दुनिया के सामने मैं अपना केस दे के आऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर मुझे धरना भी देना पड़ा तो मैं अपनी फैमिली के साथ उधर बैठ जाऊंगा, वो फैसले लेके जिसको ये जाले हैं नीचे जैल लोग और गलत तर्जमे कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला इसी सुप्रीम कोर्ट में लेके आऊंगा। और मेरी कोशिश कर रहे हैं, बड़े हाई लेवल पे कमेटी बन रही है, जुडिशियल कमीशन बनने की कोशिश हो रही है। अगर अल्लाह करे जुडिशियल कमीशन बन जाए, सारा केस इधर सुप्रीम कोर्ट में सुने और जो मेरा पैसा टाइम बर्बाद किया इन लोगों ने, जो मुझे जलील किया, जो मुझे मारा, ये सारी दुनिया के सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आपने मेरा जरूर साथ देना है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।